से स्टार्ट करते हैं। हाँ ठीक है। ठीक है सर, आ गए ना? जी सर, आ गए। चलो तो शुरू करें। जी सर। सभी को नमस्कार। जैसा कि हम सभी को ज्ञात है कि हमारी वैदिक परंपरा है, किसी भी कार्य का शुभारंभ हम मंगलाचरण से करते हैं। तो आप सभी से अनुरोध है, अपने स्थान पर बैठे ओंकार मंत्र के जप के साथ हम इस कार्यक्रम का प्रारंभ करते हैं। ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। ओंकाराय नमो नमः। ओंकाराय नमो नमः। जैसा कि हम सभी को ज्ञात है, आज के व्याख्यानमाला श्रृंखला में हमारे मध्य परम आदरणीय डॉक्टर राजीव रस्तोगी जी हैं। आप एक प्रतिष्ठित प्राकृतिक चिकित्सक और योग के विद्वान हैं। देश ही नहीं, विदेश के अनेक शिक्षण संस्थानों के साथ साथ विदेश की अनेक सरकारों के साथ, ICCR के साथ आपने एक उत्कृष्ट सेवा प्रदान किया है। सबसे बड़ी विशेषता यह है कि जब देश में गिने चुने प्राकृतिक चिकित्सक थे, तब से आप अपना सेवा कार्य आयुष मंत्रालय भारत सरकार को दे रहे हैं। सर, मैं आपका विश्वविद्यालय परिवार विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर आचार्य सिकंदर कुमार जी की ओर से, विभागाध्यक्ष योग अध्ययन विभाग प्रोफेसर विजय कुमार शर्मा की ओर से तथा अपने सहयोगियों की ओर से डॉक्टर दिसंबर सिंह रंजन एवं डॉक्टर अर्पिता नेगी तथा यहाँ उपस्थित सभी श्रोतागण और साधकों की ओर से विश्वविद्यालय परिवार की ओर से आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। जैसा कि हम सभी को ज्ञात है कि आप एक प्रतिष्ठित और ख्याति लब्ध विद्वान होने के साथ साथ, जो मेरा व्यक्तिगत अनुभव आपके साथ है, विगत 15-16 वर्षों का साथ है, आप एक विनम्र विद्वान के साथ साथ एक कुशल प्रशासक तथा एक सहृदयी होने के नाते एक चिकित्सक के नैतिक और गुण होने चाहिए, वो आपके विद्यमान है। ऐसे सुधी विद्वान साधक को अपने बीच पाके मैं हर्ष और धन्यता का अनुभव कर रहा हूँ। मैं सुनील जी से आग्रह करूंगा कि आपके विषय में एक संक्षिप्त जीवन वृत्त कुछ नवीन लोग हमारे साथ जुड़े हैं, उनके लिए प्रस्तुत करने की कृपा करें। सुनील जी। सुनील, पीछे से आवाज आ रही थी, म्यूट करवाइए प्लीज। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, अपने आप को म्यूट कर लीजिए। कुमार आप सुनील उनको हटाइए। पीछे से आवाज आ रही, पीछे से आवाज आ रही।
हाँ ठीक है सुनील, चलिए सभी लोग म्यूट रखेंगे। Thank you. Good morning to all Yoga Sadhaks. I, Sunil Sharma, PhD Research Scholar, Department of Yoga Studies. I show my gratitude regards to our Chief Patron, Professor Sikandar Kumar, Honorable Vice Chancellor, HPU. Patron Professor Vijay Kumar Sharma, Chairperson, Department of Yoga Studies, Organizing Secretary Dr. Satya Prakash Pathak, Program Coordinator Dr. Arpita Negiji, and Bishambar Singh Ranjan, Assistant Professor, Department of Yoga Studies. I show my gratitude regards to our technical team members and program coordinator members. So I welcome you all. I feel privileged to welcome our eminent guest speaker, Dr. Rajiv Rastogi. He is a retired Assistant Director, Central Council for Research in Yoga and Naturopathy, Ministry of Ayush, Government of India. Dr. Rastogi has more than 23 experience in his service. Under this, he has completed many research projects. Dr. Rastogi has done BNYS, MSc, PhD under the specialization of naturopathy and yoga. I feel an honor to say Dr. Rastogi has awarded so many awards. Some few are he has received Swaminathan Memorial Award in 2009. He has awarded for his book Prakritik Chikitsa Jivan Darshan from Uttar Pradesh Hindi Sansthan Lucknow 2016, Award for Excellence 2016. Prakritik Chikitsak 2020. Dr. Rastogi has most significant academic research and publication contribution. He has published 10 most referred books on naturopathy. Two books as a co-author, three books are under publication. Many chapters in most referred book by university. Workshop. As special guest, invited speaker, paper presenter, and guest of honor. He has published n numbers of research papers in pre-review index journal at national and international level. He has organized many workshops for promoting health under the domain of naturopathy and yoga. He has associated with many professional organizations with different capacities. Dr. Rastogi has traveled Egypt to participated in the program India by Need. As I seen, Dr. Rastogi has devoted his life to study and promoting the teaching and practices of naturopathy and yoga. Without consuming any more movement, I wish to extend my deeper appreciation to Dr. Rastogi, sir, for accepting and supporting our 1 month lecture series. I am fully confident, sir, that your knowledge, experience, expertise, skills will enlighten our all yoga sadhaks. Thank you, sir. Mike, over to you. थैंक यू टू ऑल। आप लोग आवाज सुन पा रहे हैं मेरी? हाँ जी सर। चलिए, और पाठक जी ठीक है, बहुत बढ़िया सर। दुर्लभ परिस्थिति आज पता नहीं कहाँ से सभी ऐप पर आ रही थी जी। तो आज यहाँ उपस्थित है हम। आपका स्वागत है सर। मुझे 1 मिनट दें, मैं इसको शेयर कर लूं, मेरे पास कुछ प्रेजेंटेशन है। हाँ जी सर। सुनील जी हेल्प करेंगे सर। हाँ ध्रुव ले बेटा। हाँ जी। हाँ पाठक जी, उसको ओपन करवा दीजिए शेयर करने के लिए। सुनील सर देखो कुछ करे, ओपन करिए पीपीटी। सुनील आवाज सुन पा रहे हैं ना? सुनील हाँ, आप उस पे शेयर कर दीजिए। हाँ ठीक है, शेयर करिए। ग्रीन कलर का शेयर लिखा हुआ होगा। शेयर पे क्लिक कीजिए, फिर मैं ओके बोल दूंगा।
हाँ सुनील जी अभी नहीं हुआ। नहीं हुआ सर। आगे सर। हाँ हाँ ठीक। सर शुरू कर सकते हैं आगे। हाँ हाँ। सो आप सब लोगों का इस कार्यक्रम में स्वागत है। रिस्पेक्टेड वीसी सर जो हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी के हैं, डिपार्टमेंट योगा स्टडीज के जो चेयरमैन सर हैं, हमारे पाठक जी, और इनकी जो फैकल्टी है, डॉक्टर अर्पिता नेगी हैं, डॉक्टर विशंभर जी हैं, मैडम रीता भल्ला भी हैं, वो दिख रही हैं मुझे, मैडम को मेरा नमस्ते। तो आज का जो टॉपिक है मुझे जो मिला है वो है दैट इज योगा एंड नेचुरोपैथी। उसके पहले इस टॉपिक पे जाने से पहले मैं आज का जो दिन है दैट इज वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। आज विश्व पर्यावरण दिवस है और हम सब लोग जानते हैं कि विश्व पर्यावरण दिवस, पर्यावरण जो है हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। खासतौर से अगर हम योग और प्राकृतिक चिकित्सा की बात करें तो पर्यावरण जो है सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। हमारा स्वास्थ्य जो है और जो एनवायरनमेंट है दूसरे एक दूसरे से दोनों कोरिलेटेड हैं। मैं मान के चलता हूं अगर हमारा एनवायरनमेंट हेल्दी है तभी हम हेल्दी रहेंगे। अगर पर्यावरण स्वस्थ नहीं है तो हमारे लिए बहुत मुश्किल है कि हम अपने आप को स्वस्थ रख पाए। अनफॉर्चुनेटली हमारे जो स्वार्थ है, हमारी जो लालच है, जो भी आप कह सकते हैं, उसकी वजह से हमने अपने एनवायरनमेंट को बहुत बिगाड़ दिया है, चेंज कर दिया है, प्रदूषित कर दिया है। आप देखते हैं जल प्रदूषण है, वायु प्रदूषण है, ध्वनि प्रदूषण है, मृदा प्रदूषण है, कितने सारे नाम है प्रदूषण के। और इन सब की वजह से पूरी धरती जो है, पूरा जो एनवायरनमेंट है, पूरा जो पर्यावरण है, वो आप लोग सहमत होंगे शायद मेरी बात से कि ये रहने लायक नहीं रह गया है। प्लास्टिक जो है पूरी धरती जो है, पूरे नदियां, समुद्र, पहाड़ सारे प्लास्टिक से ढके हुए हैं। इतना कूड़ा हमने प्लास्टिक का इकट्ठा कर दिया है। तो मुझे लगता है आज का ये दिन बहुत अच्छा है। हमको लोगों को सेंसिटाइज करने की जरूरत है कि भैया अगर पर्यावरण को बचा के रखना है, पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाना है, तभी हम अपने आप को स्वस्थ रख पाएंगे। न केवल हम स्वस्थ रहेंगे बल्कि आगे की जो जनरेशन है, आगे की जो पीढ़ियां हैं, जिसको हम ये दिख रहे हैं मुझे बच्चा वॉइस नहीं आ रही। नहीं, मैं ऊपर कोने में देखना, लेफ्ट हैंड साइड पे ऊपर कोने में विरासत में जो है हमको नई पीढ़ी को लिखा होगा, जो देके जाएंगे वो यही है। शायद इस वजह से नहीं आ रही होगी। मैं एक बार जहाँ काटता हूँ, तक फिर योग कॉल एवं करता हूँ प्राकृतिक आपको। चिकित्सा का सवाल है, ठीक है ओके। वो पर्यावरण से बहुत ज्यादा जुड़ा हुआ है। हम सब जानते हैं इस ब्रह्मांड का जो निर्माण है पंच महाभूतों से हुआ है, पृथ्वी, जल, वायु, धूप और आकाश। योग और प्राकृतिक समय मानते हैं कि हमारा शरीर भी इन्हीं से बना है। तो कहने का मतलब यह है कि पर्यावरण और हमारी जो चिकित्सा पद्धतियां हैं एक दूसरे से बहुत सारी जुड़ी हुई हैं और हमको इनको साथ लेके चलना है। पर्यावरण अगर अच्छा रहेगा, स्वस्थ रहेगा, तभी हम अपने आप को स्वस्थ रख पाएंगे। तो मैं आप सब लोगों को पर्यावरण दिवस की शुभकामनाएं देते हुए मैं अपने टॉपिक पे चलता हूँ। योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा फ्रॉम इलनेस टू वेलनेस। चरक संहिता का एक सूत्र है, धर्मार्थ काम मोक्षाणाम आरोग्यम मूलमुत्तमम्। इसका हिंदी में अर्थ ये है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का मूल जो है वो उत्तम आरोग्य, उत्तम स्वास्थ्य ही है। कहने का मतलब ये है कि इन चारों की प्राप्ति हमें आरोग्य के बिना संभव नहीं है। इसको दूसरे ढंग से आप समझें तो एवरी ओनली थ्रू गुड हेल्थ। मतलब हेल्थ इतनी इंपॉर्टेंट है कि अगर आप धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष या कोई भी दुनिया की चीज करना चाहें तो जब तक आप स्वस्थ नहीं हैं, जब तक आपका स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, तब तक आपके लिए सारी चीजें बहुत जो है मुश्किल है। योग और
नेचुरोपैथी की बात चले तो उसके पहले मैं एक घटना और आपको बताना चाहूंगा। दलाई लामा जी का आप सब लोग जानते हैं। उनसे एक बार किसी ने पूछा कि साहब ह्यूमैनिटी के बारे में, ह्यूमन जो जनरेशन है उसके बारे में आपके क्या विचार हैं? तो बड़ा इंटरेस्टिंग उनका रिप्लाई था, मैन सेक्रीफाइसेस हिज हेल्थ इन ऑर्डर टू मेक मनी। मनुष्य जो है वो पैसा कमाने के लिए, धन के अर्जन के लिए, धन की प्राप्ति के लिए अपना पूरा स्वास्थ्य जो है वो गंवा देता है। उसके बाद देन ही सेक्रीफाइसेस मनी टू रिकूपरेट हिज हेल्थ। उसके बाद वो जो पैसा उसने कमाया है, जो धन प्राप्त किया है, उससे वो अपने स्वास्थ्य को दोबारा पाना चाहता है। उसके बाद एंड देन ही इज सो एंशियस अबाउट द फ्यूचर दैट ही डज नॉट एंजॉय द प्रेजेंट, एज ए रिजल्ट ही डज नॉट लिव इन द प्रेजेंट और द फ्यूचर। उसके बाद वो इतना उलझन में रहता है, इतना तनाव में रहता है कि ना तो प्रेजेंट को एंजॉय कर पाता है, ना फ्यूचर को एंजॉय कर पाता है, ना स्वास्थ्य को ही प्राप्त कर पाता है, और अल्टीमेटली ही लिव्स एज इट इज नेवर गोइंग टू डाई एंड देन डाइज हैविंग नेवर रियली लिव्ड। मतलब जीवन क्या है उसका आनंद वो नहीं ले पाता। पैसा कमाने की होड़ में, स्वास्थ्य को इकट्ठा करने की होड़ में, स्वास्थ्य को मेंटेन करने की होड़ में वो परेशान रहता है और सारा समय उसका जो इस तरह से बीत जाता है। आप सब जानते हैं, पहले हमने कहावत सुनी थी, हेल्थ इज वेल्थ। बचपन से हम सुनते आए हैं हेल्थ इज वेल्थ, स्वास्थ्य ही धन है। पर शायद मुझे नहीं लगता कि बचपन में हम इसका मतलब समझे होंगे कि वास्तव में स्वास्थ्य धन कैसे है। सो हाउ टू कनेक्ट हेल्थ विद वेल्थ, ये जो कहावत है हेल्थ इज वेल्थ, इसको कैसे कनेक्ट किया जाए, कैसे जोड़ा। अब शायद हम लोग इस स्टेज में हैं, मैच्योरिटी की स्टेज में हैं, या लाइफ की इस अवस्था में हैं कि हम इसका मतलब धीरे धीरे समझने लगे कि हाँ वास्तव में हेल्थ जो है वो वेल्थ है। और कई बार क्या होता है ना कि जीवन का जो बहुत इंपॉर्टेंट समय है, जीवन का जो बहुत अनमोल समय है, वो हम गंवा देते हैं, खो देते हैं बीमारी के कारण। हमारी प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है, हमारा आउटकम कम हो जाता है, और अल्टीमेटली हम जो है बीमार उसमें जो है वो रहने लगते हैं। अगर हम योग और नेचुरोपैथी की बात करें तो स्वास्थ्य को बॉडी, माइंड और स्पिरिट, तीनों का जो संतुलन है, तीनों की जो साम्य अवस्था है, वो उसको हमने स्वास्थ्य माना है, चाहे वो योग हो, चाहे वो प्राकृतिक चिकित्सा हो। ये जो अवस्था है, साम्य अवस्था, शरीर की, मन की और आत्मा की, इसमें जो शरीर जो है मैक्सिमम, ऑप्टिमम शरीर काम इसमें करता है। कई बार आपने महसूस किया होगा कि आप बीमार नहीं हैं, या आप चिकित्सक के पास गए, आपको कोई बीमारी उसने डायग्नोज नहीं की, कोई बीमारी का जो है निदान नहीं हुआ, फिर भी आपको लगता है कि आपका शरीर जो है उतना सक्षम ढंग से काम नहीं कर पा रहा है, उतना अच्छे ढंग से काम नहीं कर पा रहा है जितना उसको करना चाहिए। पर कई बार हम उसको एनालाइज करते हैं, कई बार एनालाइज नहीं करते। व्हाट आई मीन टू से, ये जो हमको लगता है कि हम बहुत अच्छे ढंग से काम नहीं कर पा रहे हैं, इसका कारण एक ये भी हो सकता है कि हमारा जो इकोसिस्टम है उसे हमने अपने आप का जो सामंजस्य है, अपना कोऑर्डिनेशन है, वो शायद नहीं बैठाया है। ये इकोसिस्टम में जितने पशु पक्षी हैं, जितने पेड़ पौधे हैं, फूल पत्तियां हैं, धूप, हवा, पानी, आकाश, जो भी चीजें हैं, सारे इकोसिस्टम का पार्ट है और सब इक्वल के हिस्सेदार हैं। ऐसा नहीं कि खाली जो मनुष्य जाति है उसी की सारी जिम्मेदारी है। ये जितने लोग हैं इस पर्यावरण में, एनवायरनमेंट में, ये उन सबकी जिम्मेदारी है और सबका बराबर का हिस्सा है उसमें, उस इकोसिस्टम में। तो जरूरत क्या है, अगर हमको स्वस्थ रहना है तो ये जो हमारा ग्लोबल इकोसिस्टम है, इसको हमको स्टेबल बनाना होगा और इसको सस्टेनेबल बनाना होगा। ये दोनों चीजें जरूरी हैं। बात समस्या या जो समय इस बात का है कि लोगों को हम सेंसिटाइज करें कि अपने ग्लोबल इकोसिस्टम को स्टेबल बनाएं और सस्टेनेबल बनाएं। हम लोग योग और प्राकृतिक चिकित्सा की बात कर रहे थे, तो मैं कहना चाहूंगा कि हेल्थ इज हैविंग वेरी क्लियर फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन। बचपन में शायद हमने नहीं समझा होगा, नहीं उस पर उतना ध्यान दिया होगा कि हाउ हेल्थ इज वेल्थ। नाउ यू कैन रियलाइज कि हेल्थ इज रियली हैविंग वेरी क्लियर फाइनेंशियल इम्प्लीकेशंस। कैसे? अगर आप हेल्दी हैं, इसका मतलब यह है कि आपकी प्रोडक्टिविटी अच्छी है, आप ऑफिस में काम कर रहे हैं तो आप अपना काम जो है बहुत अच्छे ढंग से अंजाम दे सकते हैं।
आप बिजनेस कर रहे हैं, आप स्टूडेंट हैं, आप टीचर हैं, व्हाटएवर किसी भी फील्ड में आप हैं, तो हेल्दी होने का मतलब ये है कि आप अपना परफॉर्मेंस जो है बहुत अच्छे ढंग से कर रहे हैं। और अगर आप हेल्दी नहीं हैं तो यू अंडरस्टैंड, अगर आप ऑफिस में हैं तो आपको बहुत सारा समय बीमारी की वजह से छुट्टियां लेने में बीत जाता है, आपको बहुत सारा समय हॉस्पिटल्स में चला जाता है, बहुत सारा समय आप डॉक्टरों के पास चले जाते हैं, और इवन इतना होने के बाद भी आप उतना अपने आप को ऑप्टिमम, उतना हेल्दी, उतना कंफर्टेबल फील नहीं करते जितना आपको होना चाहिए। सो आई मीन टू से कि हमारी जो हेल्थ है वो हमारी प्रोडक्टिविटी से डायरेक्टली रिलेटेड है। बट हमने शायद जो इसका इम्पैक्ट है अनहेल्दी होने का स्टेट ऑफ प्रोडक्टिविटी पे, हमारी प्रोडक्टिविटी पे उसका क्या इफेक्ट पड़ता है, हम उसको शायद या तो नहीं स्वीकार करते हैं, या ड्यू टू इग्नोरेंस उसको नहीं मानते हैं, इंटेंशनली अनइंटेंशनली जो भी कारण हो, लेकिन हमने उसको या तो नहीं माना है या बहुत देर से समझा है कि हमारा जो अनहेल्दी होना है वो हमारी फैमिली पे, हमारी सोसाइटी पे, हमारे देश पे, हमारे काम काज पे कितना उसका जो है खराब असर पड़ता है। सो योग और नेचुरोपैथी क्या कहते हैं? हेल्थ इज ए स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम ऑफ बॉडी, माइंड एंड स्पिरिट। मैंने अभी यही बताया कि स्वास्थ्य जो है वो बॉडी, माइंड और स्पिरिट तीनों का इक्विलिब्रियम की स्टेट है। तो इन तीनों को हम इक्विलिब्रियम में रख पाएंगे, देन ओनली वी आर हेल्दी। अच्छा, एक चीज और है, we need to coordinate with our ecosystem to make it stable and sustainable for health and wellness। अगर हमको हेल्थी रहना है, स्वस्थ रहना है, वेल रहना है, तो हमको अपने सिस्टम के साथ कोऑर्डिनेट करना होगा, उसके साथ जो है तालमेल बैठाना होगा, और उसके साथ जो है कनेक्ट होना होगा। सो योग और नेचुरोपैथी सिस्टम जो है वो इम्फेसिस किस पे देते हैं? हेल्थ पे, नॉट ऑन डिजीज। देखिए, अगर आज का सिनेरियो आप देखें, अपने देश का देखें, कहीं का भी देखें, so what we are promoting, whether we are promoting health or we are treating disease, there are two things। एक तो यह है कि हेल्थ को प्रमोट करना, दूसरा बीमारी को ठीक करना, दोनों अलग अलग चीजें हैं। हमारा जो सिस्टम है, योग प्राकृतिक चिकित्सा जो सिस्टम है, उसका सारा एम्फेसिस जो है वो प्रमोशन ऑफ हेल्थ पे होता है, और सेकेंडरी एम्फेसिस जो है वो ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज। हम ये मानते हैं कि अगर आप बीमारी से अपने आप को बचा पाएंगे, बीमारी से अपने आप को दूर रख पाएंगे, तो शायद सबसे बड़ा अचीवमेंट है ये। कारण बहुत सिंपल सा है, टू प्रिवेंट अ डिजीज बिफोर इट कम्स, बीमारी आने से पहले अगर हम उसको रोक लें तो आई थिंक इट इज ऑलवेज एडवांटेजियस। हमेशा उसके फायदे हैं, कोई नुकसान नहीं है। आप किसी डॉक्टर के पास जाएंगे, साहब मुझे प्रॉब्लम हो गई, डॉक्टर बड़ा अस्पताल है, वहां बहुत सारे आपको टेस्ट लिखेगा, बहुत सारे इन्वेस्टिगेशन कराएंगे, अच्छा खासा पैसा उसमें खर्च हो जाएगा। उसके बाद भी डॉक्टर फिर कहेगा साहब ये तो इतनी बड़ी बीमारी है, इतनी पुरानी बीमारी है, आपको बहुत सारी चीजें लेनी पड़ेंगी। तो वो सारी जो प्रॉब्लम है उससे अगर बचना है, सो वी हैव टू फोकस ऑन हेल्थ, नॉट द डिजीज। मैंने एक किताब पढ़ी, डॉक्टर विठलदास मोदी जी हैं, गोरखपुर में आरोग्य मंदिर के संस्थापक हैं, उनकी किताब है रोगों की सरल चिकित्सा। उसमें उन्होंने बहुत अच्छा स्टेटमेंट दिया, बहुत अच्छी चीज लिखी कि बीमार होने के बाद अगर आप ठीक होना चाहेंगे तो उसमें बहुत बखेड़ा है, बहुत झंझट है, ये करो, अस्पताल जाओ, दवाई खाओ, ये दुनिया भर की चीजें। लेकिन बीमार ना होना बहुत आसान है, नंबर एक। नंबर दो, वो आपके अपने हाथ में है। जब आप चाहें तो आप बीमार पड़े, जब आप चाहें तो ना पड़े। तो बीमार पड़ना तो कोई नहीं चाहता, हर आदमी स्वस्थ रहना चाहता है। तो स्वस्थ रहने के लिए क्या करना होगा? योग और नेचुरोपैथी सिस्टम में जो फोकस बताया जाता है, जो प्रमोशन ऑफ हेल्थ पे जो जोर दिया जाता है, उसको आपको अपने जीवन में उतारना होगा, अपने जीवन में अपनाना होगा। तो क्योंकि सारा प्रमोशन हेल्थ पे है, इसलिए सारी चीजें आपको हेल्दी बनाने में मदद करेंगी। एक और चीज है, योग और प्राकृतिक चिकित्सा जो पद्धतियां हैं, तो देखिए हमारी जो हेल्थ है उसके बहुत सारे डायमेंशन है, आप जानते होंगे। फिजिकल डायमेंशन है, देन मेंटल है, देन सोशल है, स्पिरिचुअल है, इमोशनल है। तो ये सारे डायमेंशन जो हैं, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, भावनात्मक, आध्यात्मिक, तो नेचुरोपैथी और योग जो चिकित्सा पद्धतियां हैं, ये आपकी पर्सनालिटी जो है, आपकी हेल्थ की जितने भी डायमेंशंस हैं, जितने भी एस्पेक्ट्स हैं, उन सबको इक्वली डेवलप करने की कोशिश करती है। देखिए, सबसे बड़ी अच्छी बात क्या है कि देयर इज इक्वल डेवलपमेंट।
देयर इज नो वन वे डेवलपमेंट नहीं है कि साहब ये फिजिकल डेवलपमेंट ज्यादा हो गया, मेंटल नहीं हुआ, या इमोशनल ज्यादा हो गया, सोशल नहीं हुआ। सो नेचुरोपैथी और योग जो सिस्टम्स हैं वो आपकी पर्सनालिटी के जितने भी एस्पेक्ट हैं सबको इक्वली डेवलप करने की कोशिश करती हैं और इक्वल आपकी पर्सनालिटी को विकसित होने का मौका देती है। ये चीज मुझे नहीं लगता किसी और सिस्टम है। दो हमारे देश में बहुत सारे सिस्टम्स हैं, लेकिन इतना जोर जो है, जो डायमेंशंस पे उनको डेवलप करने पे जो योग और नेचुरोपैथी में दिया जाता है, तो वो दूसरों में नहीं है। इसके बाद मैंने आपको बताया कि जो बीमारी को रोकना बहुत आसान है, बहुत अच्छा है और बहुत सरल भी है। लेकिन हुआ क्या कि ये जो सिंपल से जो पॉइंट था, ये जो सिंपल सा पॉइंट था कि भाई बीमारी को कैसे रोका जाए, उसके लिए हम कोशिश करें, उसके लिए प्लान करें, उसको हमने इग्नोर कर दिया या उसको हंसी में उड़ा दिया या उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, आप यूं कह सकते हैं। और हुआ क्या कि हम इंस्टेड ऑफ पैट्रोनाइजिंग हेल्थ, हम बजाय स्वास्थ्य को प्रोत्साहन देने के, स्वास्थ्य को संरक्षण देने के, हम क्या करने लगे, हमारा सारा फोकस जो है बीमारी के इलाज पे हो गया। और नतीजा क्या हुआ, व्हाट वी आर सीइंग इन द प्रेजेंटेशन, वी हैव कन्वर्टेड दिस ब्यूटीफुल प्लेनेट इनटू ए सिक प्लेनेट। आज पूरी पूरी धरती जो है, आप सब जानते हैं इस बात को, और इट इज वेरी पेनफुल फॉर अस टू से कि पूरी धरती आज जो है वो बीमार हो गई। आप लोगों ने अभी कोरोना की बात हो रही थी, कोरोना महामारी है ना। लास्ट ईयर आपको याद होगा कि लॉकडाउन हो गया था। सो देयर आर हंड्रेड्स ऑफ न्यूज, टीवी में भी न्यूज आती थी, न्यूज़पेपर्स में भी आता था कि चूंकि ह्यूमन जो मनुष्य प्रजाति है वो घर में बंद है, लॉकडाउन में हम सब लोग घर में बंद थे, तो नेचर का जो नेचुरल जो फिनोमेना था, नेचुरल जो इसका डिस्कोर्सेस थे, नदियों का पानी साफ हो गया, आकाश साफ हो गया। मैं दिल्ली में रहता हूँ तो दिल्ली में एयर क्वालिटी मेजरमेंट होता है, तो एयर क्वालिटी जो है वो बहुत अच्छी हो गई, सांस लेने लायक हो गई, है ना, हवा साफ हो गई और सारी चीजें, पेड़ पौधे जो है ज्यादा हरे भरे हो गए, पशु पक्षी ज्यादा जो है पक्षी सारे जो है दिखने लगे। तो कहने का मतलब ये कि नेचर को एक मौका मिला, क्योंकि हमारा जो इंटरफेरेंस उसमें कम हो गया या नहीं के बराबर हो गया। आप सब लोग जानते हैं, आपने सबने पढ़ा होगा, इतना जो है इफेक्ट पड़ा। तो अब आप देखिए कि हमारा जो इम्पैक्ट है, हमने किस तरह से किस कदर जो है इकोसिस्टम को जो है उसको डिस्ट्रॉय किया, उसको डिस्टर्ब किया, जिसकी वजह से सारा जो पूरा प्लेनेट जो है वो बीमार हो गया। और स्टिल अभी भी अगर हम नहीं समझेंगे, अभी भी हम अपने सिस्टम में ये जो ब्यूटीफुल चीजें हैं, जो मेजर्स हैं, स्ट्रेटेजीज हैं योग नेचुरोपैथी की, उनको हम अडॉप्ट नहीं करेंगे, तो अब देखिए मतलब इट इज वेरी डिफिकल्ट टू सी ए really healthy people. Finding a really healthy person is difficult because we are not promoting health, rather treating the disease only. अगर आप WHO की जो हेल्थ की डेफिनेशन है, आयुर्वेद की जो हेल्थ की डेफिनेशन है, या योग नेचुरोपैथी में जो हेल्थ की डेफिनेशन हम कहते हैं, बताते हैं, उसके हिसाब से आप देखें तो मुझे नहीं लगता कि कोई स्वस्थ आदमी मिलेगा। एवरीबॉडी इज हैविंग सम और अदर डिसऑर्डर। क्यों? क्योंकि हेल्दी रहने का जो कंसेप्ट है, हेल्थ का जो कंसेप्ट है, योग का, प्राकृतिक चिकित्सा का, ये हमारी परंपरागत चिकित्सा पद्धतियां हैं, उनका जो कंसेप्ट है उसको हमने भुला दिया। और इंस्टेड ऑफ टॉकिंग रिगार्डिंग प्रमोटिंग हेल्थ, वी स्टार्टेड ट्रीटिंग द डिजीज ओनली। खाली हम बीमारी का इलाज करने लगे, उसकी स्थिति जो है आप जो है देख ही रहे हैं। तो वी अंडरस्टैंड कि हेल्थ इज इम्पोर्टेंट फॉर अस, बट व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट? एक कारण ये हो सकता है टू बिकम फिट एंड स्टे अवे फ्रॉम डिजीज। आपको फिट रहना है और बीमारी से बचे रहना है, इसके लिए हेल्थ जरूरी है। और दूसरा टू स्पेंड पीसफुल, एवरीबॉडी वांट्स टू से यहाँ से बिल्कुल शांति से, बिल्कुल रिलैक्स जो है, एक आराम से जिंदगी जो है, शांतिपूर्ण जिंदगी, क्योंकि तनाव बहुत है, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं, और बहुत सारी चीजें हैं जो हमारा डे टू डे जो है टेंशन जो है, हमारी जो एंजाइटी है, हमारा जो डिप्रेशन है, हमारी जो इरिटेशन है, चिड़चिड़, वो सारी चीजें बढ़ाती रहती हैं। उसकी वजह से और बहुत सारी चीजें होती हैं। सो हेल्थ हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। सो व्हाई योगा एंड नेचुरोपैथी फॉर स्टेइंग हेल्दी? हम योग नेचुरोपैथी को ही क्यों कंसीडर करें? वी हैव ए लॉट ऑफ सिस्टम्स। हमारे पास जो है आयुष के नाम पे और बहुत सारी चीजें हैं, सिद्धा सिस्टम है, होम्योपैथी है, आयुर्वेद है ना? सबके अपने अपने एडवांटेजेस हैं।
सबकी अपनी अपनी लिमिटेशंस हैं। तो मैं योग नेचुरोपैथी की बात कर रहा हूँ, तो स्टेइंग हेल्दी, स्वस्थ रहने के लिए हमको योग नेचुरोपैथी को क्यों अपनाना चाहिए? बिकॉज इट इज साइंस ऑफ हेल्थ एंड हेल्दी लिविंग। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा में स्वास्थ्य की बात करते हैं और हेल्दी लिविंग की बात करते हैं। we never talk about disease. Instead, अगर आप इसको अडॉप्ट करेंगे इस सिस्टम को, इट रिड्यूसेस द चांस ऑफ इलनेस। बीमार होने की संभावना जो है उसकी संभावनाएं बहुत कम हो जाएंगी या मिनिमम हो जाएंगी। मोरओवर इट चेंजेस द हैबिट्स एंड टीचेस ए करेक्ट एंड हेल्दी लाइफस्टाइल। योग नेचुरोपैथी में क्या, आज सब लोग कहते हैं ना सब हमारी लाइफस्टाइल खराब है। आप किसी से कोई बात पूछिए, सर क्या करें, लाइफस्टाइल ही ऐसी हो गई। अरे भाई लाइफस्टाइल ऐसी कैसे हो गई? यू हैव चेंज योर लाइफस्टाइल। आपने अपनी लाइफस्टाइल को बिगाड़ लिया। किसने कहा आपसे कि रात को 12 बजे तक जागो और सुबह 9 बजे उठो? आपने अपने आप किया। सो द फंडामेंटल थिंग्स को हमने भुला दिया। तो योग और नेचुरोपैथी क्या करती है कि आपकी जो हैबिट्स हैं, आपकी जो आदतें हैं, आपके जो आपके मन में बहुत सारी चीजें जो हैं उनको धीरे धीरे ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश करती है, आपकी आदतों को सुधारने की कोशिश करती है, और अल्टीमेटली आपको एक सही दिनचर्या कैसी होनी चाहिए, सही जीवन शैली कैसी होनी चाहिए, उसके बारे में आपको सिखाने की कोशिश करती है। सो नेचुरोपैथी की डेफिनेशन अभी हम इसको छोड़ देते हैं। ये देख सकते हैं, नेचुरोपैथी इज अ सिस्टम ऑफ स्टिमुलेटिंग द बॉडीज इनहेरेंट पावर टू रिगेन हेल्थ विद द हेल्प ऑफ 5 ग्रेट एलिमेंट्स ऑफ नेचर, दैट इज पृथ्वी, जल, अग्नि, आकाश और वायु। जैसा कि मैंने बताया, पृथ्वी जो है ये पूरा ब्रह्मांड जो है पंच महाभूतों से बना है। तो नेचुरोपैथी में क्या करते हैं प्राकृतिक समय की, वी बिलीव कि हमारा शरीर भी इन्हीं पंच महाभूतों से बना है, और ये जो 5 महाभूत हैं, जो 5 तत्व हैं, जब शरीर में इनका असंतुलन हो जाता है ड्यू टू सो मेनी रीजंस, तो हम बीमार पड़ जाते हैं। तो प्राकृतिक चिकित्सा क्या करती है, वापस इन चीजों का संतुलन लाने की कोशिश करती है विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट मॉडलिटीज, जो आगे हम लोग बात करेंगे उसके विषय। तो हम वापस जो है वो स्वस्थ हो जाते हैं। तो ये हमारे 5 तत्व हैं। पृथ्वी तत्व है ना, दूसरा जल तत्व हो गया, तीसरा आपका जो है आकाश तत्व हो गया, तो आप देखेंगे सूर्य तत्व जो है अग्नि, और 5वां जो है वायु तत्व। ये 5 तत्व हैं जो हमारे सिस्टम को हेल्दी रखने के लिए, एज वी बिलीव इन योगा एंड नेचुरोपैथी सिस्टम, दीज आर मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो हर सिस्टम की अपनी अपनी स्ट्रेंथ होती है। तो कई बार मुझे लोग पूछते हैं साहब आप कहते हो योग और प्राकृतिक चिकित्सा को अपनाना चाहिए, बहुत अच्छी बात है, पर ये तो इसमें क्या स्ट्रेंथ है, क्या आपके सिस्टम की मेरिट्स क्या हैं? सो इसको सिंप्लीफाई करें तो नेचुरोपैथी एंड योगा इज वेरी सिंपल एंड इजी टू फॉलो। बहुत आसान है। जैसे आप योग करना चाहें तो आपको एक खाली मैट चाहिए और खुली जगह चाहिए। आप कभी भी कहीं भी शुरू कर सकते हैं उसको। थोड़ा सा एक दिनचर्या बनानी पड़ेगी, एक उसको लाइफस्टाइल में आपको अडॉप्ट करना पड़ेगा। कॉस्ट इफेक्टिव है, कोई खर्चा नहीं इसमें, चाहे योग की बात हो चाहे नेचुरोपैथी की बात हो। जल चिकित्सा है, मिट्टी चिकित्सा, सारी चीजें आप सीख सकते हैं। भोजन चिकित्सा है, उपवास चिकित्सा, उसके बाद आप उसको घर में आराम से कर सकते हैं। इट इज साइंस एंड आर्ट ऑफ हेल्थ एंड हीलिंग। स्वास्थ्य और हीलिंग दोनों की साइंस को आप कह सकते हैं, वे ऑफ लिविंग कह सकते हैं। ऐसी बहुत सारी चीजें हम नेचुरोपैथी के योग के फेवर में कहते हैं। इफेक्टिव इन प्रिवेंशन ऑफ डिजीज, बीमारी से आपको बचाने में बहुत अच्छा इनका इन सिस्टम्स का इफेक्टिव रोल है। ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज तो खैर होता ही है। मोरओवर रिहेबिलिटेशन ऑफ पेशेंट्स, पेशेंट ठीक हो गया बीमारी से, उसके बाद कैसे वो बीमार ना पड़े, इसके बारे में भी बात होती है। इट प्रमोट्स पॉजिटिव हेल्थ, पॉजिटिव हेल्थ को प्रमोट किया जाता है। एलिमिनेट्स द रूट कॉज ऑफ डिजीज, दैट इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि हम बीमारी की जड़ में जाके उसको निकालने की कोशिश करते हैं। सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट नहीं है, लेकिन बीमारी का कारण खोजते हैं और उस बीमारी के कारण का निदान करके उसको रिमूव करने की कोशिश करते हैं। देन वी हैव ए होलिस्टिक अप्रोच, एक संपूर्ण चिकित्सा जिसको आप कहते हैं, एक समग्र चिकित्सा जिसको आप कहते हैं, वो योग और नेचुरोपैथी सिस्टम की विशेषता है। इट बिलीव्स इन यूनिटी ऑफ डिजीज एंड यूनिटी ऑफ ट्रीटमेंट। हम ये मानते हैं कि सभी बीमारियों का कारण एक है और उनका उपचार भी एक है। तो बीमारी का कारण क्या है? बहुत सिंपल है। व्हाट वी बिलीव इन अवर सिस्टम कि वायलेशन या डिसओबीडियंस टू द लॉज ऑफ नेचर। नेचर ने कुछ नियम बनाए हैं हमको स्वस्थ रहने के लिए।
आप चाहे आयुर्वेद में देखिए, ऋतुचर्या है, दिनचर्या है, जीवन शैली है ना? सुबह से शाम तक का एक सिस्टम बना हुआ है कि भाई ये करना है, ये नहीं करना है। उसी तरह नेचुरोपैथी में है, तो बहुत सारे नियम नेचर के बने हुए हैं स्वस्थ रहने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, रात को जल्दी सो जाना है, सुबह जल्दी उठ जाना है, खाने को खूब चबा-चबा के खाना है, खाना समय से खाना है, नियम से खाना है, खाना हमारा जो है सिंपल होना चाहिए, सीमित होना चाहिए, सात्विक होना चाहिए, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। सो व्हेन वी डिसओबे these things, these laws, then we are going to ill. देखिए, आप रात को जल्दी नहीं सोएंगे, सुबह देर से उठेंगे और लापरवाही करेंगे, तो अल्टीमेटली निश्चित रूप से हम जो है बीमार पड़ेंगे। सो चूंकि नेचुरोपैथी में, योग में बीमारी का कारण एक ही माना जाता है, इसलिए उसका इलाज भी एक ही है। मोरओवर इट इज रेगुलर सिस्टम ऑफ हीलिंग, कोई दवाई नहीं है। बहुत से लोग कहते हैं आपके पास तो कोई दवाई नहीं है, आप कैसे बीमारी का इलाज करोगे? सो आई स्ट्रेस कि साहब मेरे पास दवाई नहीं है, यही मेरी सबसे बड़ी विशेषता है। आप जो चीज दवाइयों से करते हो, बहुत सारी दवाइयां देते हो, बहुत सारी चीजें करते हो, वही काम मैं बिना दवा के करता हूँ। इट इज मोर कन्वीनियंट, मोर कंफर्टेबल एंड मोर इजी टू अडॉप्ट। लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन की बात तो खैर है ही इसमें। इंडिपेंडेंस इन हेल्थ मैटर्स, स्वास्थ्य के मामले में आपको किसी पे डिपेंडेंट नहीं होना पड़ेगा। अभी क्या स्थिति है, आप बीमार, आपको जुकाम हो गया, खांसी हो गई या और कोई प्रॉब्लम हो गई, आप डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने दवाई लिख दी, आपने केमिस्ट से दवाई खरीदी, आपने सुबह शाम खा ली, नाउ यू आर फ्री, रिलैक्स्ड। क्यों? क्योंकि भाई आपने दवाई खा ली है। नाउ यू अंडरस्टैंड कि साहब दवा तो खा ही ली है, अब तो जो करना है दवा को करना है, मेरी तो कोई जिम्मेदारी नहीं है। आप डॉक्टर से पूछोगे, वो भी कहेगा भाई आप ठीक है, आप जो भी करना है करते रहो, खाना खाते पीते रहो, दवाई दे दी है, जो करना है दवा को करना है। हियर द थिंग्स आर चेंज्ड। नेचुरोपैथी में क्या है, योग में क्या है कि ऐसी स्थिति नहीं है। यहाँ पे नेचर जो है, सिस्टम जो है, आपको इंडिकेट कर देता है कि भैया ये प्रॉब्लम होने वाली है ना? अगर आपको सिर में दर्द है, तो नेचुरोपैथी का जो योग का जो टीचर है, गुरुजी हैं, वो आपको बता देते हैं कि भैया आपको सिर में दर्द हो तो आपको उपवास कर लेना है, आपको जुकाम हो तो आपको नींबू पानी पीना है, आपको ये हो तो आपको ये करना है। तो नाउ यू आर नॉट डिपेंडेंट ओवर फिजिशियंस। आपको चीजें पता चल गई, आपको कभी सिर दर्द हुआ, आप शाम का खाना मत खाइए। आपको जुकाम हो गया तो दवा लेने की जरूरत नहीं है, आप जो है नींबू पानी ले लीजिए, शहद पानी ले लीजिए। तो एक्यूट प्रॉब्लम्स आसानी से ठीक हो सकती हैं। तो कहने का मतलब ये है कि आप हेल्थ के मामले में कुछ हद तक अपने आप को इंडिपेंडेंट मान सकते हैं। इट इज फ्री फ्रॉम सिंथेटिक ड्रग्स, कोई केमिकल्स नहीं है, कोई सिंथेटिक ड्रग्स नहीं है। द कंसेप्ट इज बी योर ओन डॉक्टर, आपको इतना चीजें सिखा दें। दैट्स व्हाई योग में तो खैर गुरुजी होते ही हैं, योग के गुरुजी। नेचुरोपैथी में भी डॉक्टर को टीचर का दर्जा भी दिया जाता है, क्योंकि वो आपको सारी चीजें सिखा देता है कि भैया क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो कंसेप्ट इज बी योर ओन डॉक्टर। मोreover these lowers the cost of treatment, आपका जो कॉस्ट ऑफ ट्रीटमेंट बहुत कम हो जाता है, क्योंकि सारी चीजें आप सीख जाते हैं। आपको अगर आसन सीख लिया आपने गुरुजी से, उसके बाद आप घर पे उसको रेगुलर प्रैक्टिस कर सकते हैं और धीरे धीरे अपने आप को स्वस्थ कर सकते हैं। मेक्स द लाइफ डिजीज एंड स्ट्रेस फ्री। और आप देखिए, अगर आप बीमारी से फ्री हैं, अगर आपको कोई बीमारी नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, तो आप कितना रिलैक्स हैं, कितना कंफर्टेबल हैं। यू कैन कंपेयर विद दोज पीपल जो हॉस्पिटल जाते हैं, हॉस्पिटल की लाइन में लगना पड़ता है, बहुत सारी चीजें हैं। तो कम से कम उससे आप जो है अपने आप को फ्री रख सकते हैं। इम्प्रूव वाइटलिटी, आजकल जो है बहुत बात हो रही है वाइटलिटी की, इम्यूनिटी की। तो ऑफ कोर्स योग और प्राकृतिक चिकित्सा पद्धतियां हैं जो वो आपकी वाइटलिटी को बढ़ाने में मदद करती हैं। यूजफुल इन नॉट ऑल टाइप्स ऑफ पेशेंट्स, सभी तरह के मरीज इसको कर सकते हैं मोस्टली विद द गाइडेंस ऑफ फिजिशियन। मेक्स द पर्सन प्रोडक्टिव फॉर सोसाइटी बाय मैनेजिंग इट। अगर आपकी बीमारी ठीक हो गई तो आप सोसाइटी के लिए यूजफुल एसेट हो जाएंगे, प्रोडक्टिव हो जाएंगे। एनवायरमेंट फ्रेंडली है, क्योंकि किसी तरह का कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, कोई एनवायरमेंट के अगेंस्ट कोई चीज जो है वो नहीं है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। इनकलकेट्स गुड हैबिट्स, अच्छी आदतें आपके अंदर डालती हैं, कोई बुरी आदत नहीं है। मेक्स द पर्सन ऑप्टिमिस्टिक, और मनुष्य को जो है वो सकारात्मक बनाती है। तो ये सारी जो चीजें हैं, ये मेरिट्स हैं, ये स्ट्रेंथ हैं योग और प्राकृतिक चिकित्सा की, जिसको हमको हाईलाइट करना चाहिए। सो अब सवाल ये उठता है कि भाई वी आर इल। बहुत सी जगह मुझे जाना होता है, सरकार की नौकरी में बहुत सी जगह गया, लेक्चर्स के लिए जाता था। तो कई बार लोगों से एक सवाल पूछता था, मुझे आप बीमार क्यों हैं? तो बहुत से लोग अलग अलग तरह के जवाब देते हैं। कोई कहता साहब खाने पीने में चीजें अच्छी नहीं है, कोई कहता साहब हमारा रहन सहन अच्छा नहीं है,
कोई किसी को दोष देता है, कोई किसी को बहुत से लाइफ स्टाइल बताते हैं, पर मेरा कहना ये है कि ये सारी चीजें तो हमारे अपने कंट्रोल में है। आप क्या खाना खाना चाहते हो, क्या खा रहे हो, ये तो आपके अपने कंट्रोल में है। आपकी लाइफ स्टाइल कैसी होनी चाहिए, आपके अपने कंट्रोल में है। आपकी दिनचर्या कैसी होनी चाहिए, आपके अपने कंट्रोल में है। तो प्रॉब्लम क्या है फिर? द प्रॉब्लम इज कि आपकी हेल्थ जो है वो किसी दूसरे की जिम्मेदारी नहीं है। योर हेल्थ इज योर ओन रेस्पॉन्सिबिलिटी। योग और प्राकृतिक चिकित्सा इसी बात पे स्ट्रेस करते हैं कि आप अपने स्वास्थ्य के स्वयं जिम्मेदार बनिए। सरकार आपके स्वास्थ्य की जिम्मेदार नहीं है, आपकी फैमिली भी नहीं है, हॉस्पिटल भी नहीं है, डॉक्टर भी नहीं। यू आर योर सेल्फ रेस्पॉन्सिबल फॉर योर इलनेस। तो अगर आपको स्वस्थ रहना है तो कोई आपको स्वस्थ रहने से रोक नहीं सकता। सो अर्लियर आई टोल्ड disobedience to the laws of nature is the main cause of disease, main cause of illness. इसको अगर कैटेगराइज करेंगे तो रॉन्ग ईटिंग हैबिट्स हैं, हमारी खाने पीने की आदतें अच्छी नहीं है, फास्ट फूड है, जंक फूड है, ऑयली चीजें हैं, अनटाइमली ईटिंग है, ओवर ईटिंग है, दुनिया भर की चीजें हम करते हैं। देन रॉन्ग लिविंग हैबिट्स, हमारी जो रहन सहन की आदतें हैं वो भी उतनी अच्छी नहीं है, और रॉन्ग थिंकिंग हैबिट्स। आप ऑलरेडी इन चीजों को आप जानते हैं। आहार विहार हमारा अच्छा नहीं है, हमारा जो आचार विचार है वो भी अच्छा नहीं है, और हमारा रहन सहन भी जो है वो अच्छा नहीं है। तो ये सारी चीजें मिलके हमको बीमारी की तरफ ले जाती हैं। और प्राइमरी कॉज ऑफ डिजीज अगर हम देखें तो वाइटलिटी हमारी ये सारी जो 3 कारण मैंने आपको बताया पिछली स्लाइड में, उनकी वजह से क्या होता है कि हमारी वाइटलिटी जो है, हमारी जो जीवन शक्ति जिसको आप कहते हैं, हमारी जो रोग प्रतिरोधक शक्ति जिसको आप कहते हैं, वो धीरे धीरे कम होने लगती है। और दूसरा क्या होता है, हमारा जो ब्लड और लिम्फ का कंपोजिशन है हमारे सिस्टम में वो एबनॉर्मल हो जाता है। और तीसरा सबसे बड़ा कारण जो है एक्युमुलेशन ऑफ मॉर्बिड मैटर इन द सिस्टम। हमारी जो सिस्टम है उसमें मॉर्बिड मैटर इकट्ठा हो जाता है। मॉर्बिड मैटर से मतलब योग और नेचुरोपैथी में हम इसको ही मानते हैं कि ऐसी चीजें शरीर में रुकी रह जाती हैं जो अदरवाइज शरीर से बाहर एलिमिनेट हो जानी चाहिए। उनको किसी कारणवश शरीर जो है अपने से बाहर नहीं निकाल पाता, इसलिए शरीर में इकट्ठा हो जाते हैं और अल्टीमेटली वो बीमारी का कारण बन जाते हैं। थोड़ा सा प्रिंसिपल्स के बारे में अगर हम बात करें तो सभी डिजीज जो हैं उनके कारण, उनका ट्रीटमेंट एक ही है एक्सेप्ट फॉर ट्रॉमेटिक एंड एनवायरमेंटल कंडीशंस। प्राइमरी कॉज ऑफ डिजीज इज एक्युमुलेशन ऑफ मॉर्बिड मैटर। उसके बाद एक्यूट डिजीज जैसे खांसी है, जुकाम है, बुखार है ना, ये जो है नेचर के या बॉडी के सेल्फ हीलिंग एफर्ट्स हैं, इसलिए इनको वेलकम करना चाहिए। ऐसा नहीं कि जुकाम होते ही आप जो है तुरंत दवाई खा लें। अगर आप जुकाम हो गया है, खांसी हो गई है, बुखार हो गया है, बुखार को भी सब लोग मानते हैं कि भाई सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म है, नेचर का डिफेंस मैकेनिज्म है। टेम्परेचर शरीर का बढ़ा के नेचर जो है बैक्टीरिया वायरस जो है उनको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करती है। और अनफॉर्चुनेटली हम क्या करते हैं, हम बीच में बहुत सारी दवाइयां खा लेते हैं, इसकी वजह से जुकाम है। एक बहुत पुरानी कहावत है कि आप जुकाम का इलाज करेंगे तो 7 दिन में ठीक हो जाएगा, और जुकाम का इलाज नहीं करेंगे तो वो 1 हफ्ते में ठीक होगा। तो थिंग्स आर सेम। जुकाम के लिए अलग से कोई इलाज करने की जरूरत नहीं है। आप शरीर को रेस्ट दीजिए, आप नींबू पानी पीते रहिए, जूस पीते रहिए, तो धीरे धीरे जुकाम अपने आप ठीक हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जुकाम जो है दैट इज ए इंडिकेशन कि आपके शरीर में कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है, एंड नेचर इज ट्राइंग टू एलिमिनेट दोज मॉर्बिड मैटर्स। वो जो गड़बड़ी है नेचर उसको ठीक करना चाहती है, इसलिए उसने जुकाम के रूप में एक जो है वो चैनल बनाया, ताकि वहां से जो बलगम है, कफ है, उसके थ्रू वो जो अनावश्यक चीजें हैं शरीर से बाहर निकल जाएं। और क्या होता है कि जब हम एक्यूट प्रॉब्लम्स को सप्रेस करते रहते हैं तो अल्टीमेटली वो क्रोनिक प्रॉब्लम हो जाती हैं। और नेचुरोपैथी से, योग से आपने बहुत सारे सुना होगा, बहुत सारे पेपर्स हैं, बहुत सारे जो जर्नल्स हैं उसमें ये चीजें पब्लिश होती रहती हैं, और इट इज इस्टेब्लिश्ड कि भाई योग और प्राकृतिक चिकित्सा जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉट इवन प्रॉब्लम्स जो लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर्स हैं, जिनको हम जो है एनसीडी कहते हैं, नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज, उनमें नेचुरोपैथी से, योग से बहुत अच्छा जो है वो रिजल्ट मिलता है। लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन में बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। We believe in our system that nature is the supreme healer. प्रकृति जो है वो सबसे बड़ी चिकित्सक है, इसलिए we have to follow the laws of nature and healing from within. बीमारी जो है within अपने आप ठीक हो जाती है। The things कि आप उसको फैसिलिटेट करो। जो हमारे बहुत सारे जो ट्रीटमेंट मॉडलिटीज हैं, हम उसकी मदद से, मिट्टी चिकित्सा से, जल चिकित्सा से, और बहुत सारे जो आसन हैं, प्राणायाम, सब चीजों से हम शरीर को फैसिलिटेट करने की कोशिश करते हैं ताकि वो अपने आप को जल्दी से अच्छा कर ले।
treats all the aspects like physical, mental, social and spiritual at the same time. नेचुरोपैथी से, योग से शरीर के जितने भी जो व्याधियां हैं, चाहे वो फिजिकल हो, मेंटल हो, सोशल हो, सबको एक ही समय में सबका इलाज जो है वो किया जा सकता है. इट ट्रीट्स द बॉडी एज ए होल. तब इम्पोर्टेंट थिंग इज कि योग प्राकृतिक चिकित्सा में फ्रेगमेंटेड अप्रोच नहीं है. मतलब हम शरीर को अलग अलग टुकड़ों में बांट के नहीं देखते. हमारे लिए शरीर यह कंप्लीट यूनिट है. कंप्लीट यूनिट का मतलब शरीर के जितने भी सिस्टम्स हैं सब एक दूसरे से कोऑर्डिनेशन में, एक दूसरे से कोऑपरेशन में काम करते हैं और उनका इलाज भी इसीलिए एक साथ ही होना चाहिए. वी हैव नो फ्रेगमेंटेड अप्रोच कि भाई ये आंख का चिकित्सा अलग होगी, घुटनों की चिकित्सा अलग होगी या रेस्पिरेटरी सिस्टम की अलग होगी, सर्कुलेट, ऐसा नहीं है. वी बिलीव दैट आवर बॉडी इज अ कंप्लीट यूनिट, हेंस इट शुड बी ट्रीटेड एट द सेम टाइम. और सबसे इम्पोर्टेंट जो है, वी बिलीव दैट योर फूड इज योर मेडिसिन, हेंस नो एक्सटर्नल मेडिसिन आर यूज. बहुत से लोग कहते हैं अभी तो ड्रगलेस सिस्टम है, कोई दवा नहीं है. सो आई वुड लाइक टू से कि हमारा जो भोजन है, उसको हमने चिकित्सा का दर्जा दिया है. आहार चिकित्सा है ना, उपवास चिकित्सा. तो आपका जो भोजन है दैट इज मेडिसिन फॉर यू. आप देखें अगर किसी नेचुरोपैथी सेंटर में आपको, जहाँ इंडोर पेशेंट रहते हैं, योगा सेंटर में आपको जाने का मौका मिले, तो आप देखेंगे कि वहां पे खाने पे बहुत जोर दिया जाता है. आपका खाना कैसा होना चाहिए, खाना कितने समय में मिलना चाहिए, खाने की क्वांटिटी क्या होनी चाहिए, कितनी देर में खाना चाहिए, ये सारी चीजें पे ध्यान दिया जाता है. सो दैट वो जो फूड है वो आपको मेडिसिन की तरह हेल्प करता है और आपकी बीमारी को ठीक करने में मदद करता है. हम सब गांधी जी का नाम जानते हैं, हमारे देश के राष्ट्रपिता थे. तो कई बार उनकी अगर आप बायोग्राफी देखेंगे तो उसमें उन्होंने मेंशन किया कि भाई पंचतत्व चिकित्सा तो बहुत अच्छी है, आपने शरीर का इलाज कर लिया, व्हाट अबाउट मन? नाउ द डिजीज आर साइकोसोमेटिक इन नेचर, है ना. शरीर में बीमारी दिख रही है लेकिन उसका कारण आपका मन भी हो सकता है. कहीं आपके मन में कोई चिंता हो, कोई मन में तनाव हो, कोई मन में डिप्रेशन हो, कोई और चीज हो जिसकी वजह से आप बीमार हैं. तो क्या होता है कि अस्पताल में, चिकित्सालय में, डॉक्टर के पास शारीरिक बीमारी का इलाज तो हो जाता है लेकिन मन की बीमारी का इलाज नहीं होता. तो गांधी जी ने यही कहा कि भाई ठीक है, शारीरिक बीमारी का इलाज हो गया लेकिन मन का कैसे होगा, मन का इलाज कैसे हो? तो उन्होंने कहा कि राम नाम या प्रार्थना, प्रेयर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रीटमेंट फॉर ट्रीटिंग द मेंटल डिसऑर्डर्स. अगर हमको अपने मानसिक स्वास्थ्य को उन्नत करना है, मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ाना है, तो हमको प्रेयर जो है, किसी भी रूप में आप ईश्वर की प्रार्थना करें, आप जिस भी धर्म को मानते हैं, जैसा भी करते हैं, वो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है. इसलिए प्राकृतिक चिकित्सा में, योग में बहुत सी बार कहा जाता है कि जो पंचतत्व चिकित्सा तो हो गई, मिट्टी, पानी, धूप और आकाश, गांधी जी ने उसमें छठे तत्व के रूप में प्रार्थना को भी जोड़ दिया. तब से आप देखिए, अगर किसी नेचुरोपैथी सेंटर में विजिट करें, योग भी हम करते हैं, तो सबसे पहले हमारी शुरुआत जो है वो प्रार्थना से होती है. प्राकृतिक चिकित्सालय में भी रोगी वहां जो रहते हैं, प्रार्थना से उनकी दिन की शुरुआत होती है और प्रार्थना से उनका जो है वो समापन होता है. These are some of the treatment modalities undertaken by naturopathy: fasting therapy, diet therapy, mud therapy, hydrotherapy, massage therapy, chromotherapy, air therapy, as well as youth therapy. So थोड़ा सा ब्रीफ में लूंगा. Fasting therapy is mostly very important. Mental preparation is essential for undertaking fast. हम सब जानते हैं, हमारा एक धार्मिक जो है रेफरेंस भी रहा है, एकादशी का उपवास करना चाहिए, पूर्णमासी का उपवास करना चाहिए, अमावस्या का उपवास, ऐसी बहुत सारी चीजें शुरू से हम पढ़ते आए हैं. हमारा जो एंशिएंट स्क्रिप्चर है उसमें सारी चीजें जो है वो मेंशन है, इसलिए हमने उसको एज ए थेरेपी, फास्टिंग को एज ए थेरेपी हमने लिया है. तो हमारी चिकित्सा में जो है फास्ट जो है वो, मे बी फ्रूट डाइट हो, मे बी जूस डाइट हो, वो हर आदमी को हफ्ते में एक दिन जरूर करना चाहिए. अगर लंबे समय का फास्ट रखना है तो डॉक्टर पे डिपेंड करता है, बहुत सारी चीजें हैं उसमें, कितने दिन से आप बीमार हैं, आपकी एज क्या है, बीमारी क्या है, इसके हिसाब से. तो बेनिफिट्स क्या है फास्टिंग थेरेपी के? बॉडी डिकम्पोजेज एंड बर्न्स द डिजीज. पुराने जो खराब हुए हमारी जो कोशिकाएं हैं, सेल्स हैं, जो डैमेज हो चुके हैं, बूढ़े हो चुके हैं, खराब हैं, उन सबको डिकम्पोज करके निकाल देती है और स्पीड अप द बिल्डिंग ऑफ न्यू सेल्स. नए सेल्स का जो जनरेशन है वो शुरू हो जाता है. क्यों ऐसा होता है? बिकॉज इट इंक्रीजेज द कैपेसिटी ऑफ एलिमेंट. हमारे जो एलिमेंट्री ऑर्गन्स हैं, लंग्स, हम जो कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं, लिवर,
किडनी और स्किन से पसीना निकलता है, किडनी से यूरिन और लीवर से जो अल्टीमेटली डाइजेस्ट सिस्टम के बाद जो फीकल मैटर पास आउट होता है, इन सब का जो है, इन सब की कैपेसिटी जो है, इन सब का एक्टिवेशन बढ़ जाता है, क्योंकि उनको रोजमर्रा का जो दुनिया भर की चीजें हम खा लेते हैं ना, वो पचाने का काम नहीं करना पड़ता। जिस दिन आप फास्ट करेंगे, आप उस दिन केवल फल खाएंगे, केवल जूस पिएंगे, तो वो चीजें हम ये मानते हैं कि प्री डाइजेस्टेड फूड है, इसलिए उसको डाइजेस्ट करने में बहुत सारा शरीर को मेहनत नहीं करना पड़ेगा। तो वो सारी जो ऊर्जा बचेगी वो शरीर से एलिमिनेशन के काम में लग जाएगी। तो इट एक्सेलरेट्स द एलिमिनेशन ऑफ वास्ट मैटर। और आपकी जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, हमको कभी आराम नहीं मिलता। हम दिन भर खाते रहते हैं, टीवी देख रहे हैं तो खा रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं तो खा रहे हैं, चाय पी रहे हैं, ये कर, दिन में 3-4 बार कुछ ना कुछ हम खाते रहते हैं। एवरी टाइम आवर सिस्टम हैज टू वर्क। तो जिस दिन हम फास्ट करते हैं, उस दिन हम अपने सिस्टम को आराम देते हैं। और फास्टिंग जो है वो और डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स में डाइजेशन, कॉन्स्टिपेशन, फ्लैटुलेंस, ब्रोंकियल अस्थमा, ओबेसिटी, हाई ब्लड, गाउट और बहुत सारी बीमारियों में इसका लाभ जो है वो मिलता है। बहुत सारे रिसर्च पेपर हैं जो इंटरमिटेंट फास्टिंग के बारे में ये एस्टेब्लिश करते हैं कि फास्टिंग जो है बहुत सारी बीमारियों में बहुत अच्छा रोल है इसका ट्रीटमेंट के हिसाब से। इसके बाद डाइट थेरेपी, मैंने अभी आपको बताया कि डाइट थेरेपी बहुत इंपॉर्टेंट है। बेसिक चीजें इसकी क्या है कि हमारा जो भोजन है वेजिटेबल्स का होना चाहिए, नेचुरल फॉर्म में होना चाहिए। सीजनल फ्रूट्स हैं, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं, स्प्राउट्स हैं, सबसे अच्छे हैं वो। भोजन जो है 80% एल्कलाइन होना चाहिए, 20% एसिडिक। एल्कलाइन का मतलब जो चीजें मैंने अभी बताई आपको, फ्रूट्स हैं, फ्रेश वेजिटेबल्स हैं, स्प्राउट्स हैं, वो सब एल्कलाइन चीजें हैं। एसिडिक चीजों में वो चीजें आ गई जो हम चूल्हे पे चढ़ा के बनाते हैं। फास्ट फूड है, जंक फूड है, ये सारी चीजें बाजार की चीजें हैं, वो एसिडिक में आ गई। तो अगर हम इसको क्लासिफाई करें डाइट को, तो बेसिकली 3 तरह की डाइट हम मानते हैं। एलिमिनेटिव डाइट हो गई, सूदिंग डाइट हो गई और कंस्ट्रक्टिव डाइट हो गई। एलिमिनेटिव डाइट का जो रोल है, उसमें क्या क्या आता है, लेमन वाटर है, हनी वाटर है, साइट्रिक जूसेस हैं, टेंडर कोकोनट वाटर है, व्हीट ग्रास जूस है। एज नेम शोज, एलिमिनेटिव डाइट जो है वो शरीर से एलिमिनेशन का काम करती है। तो जब भी कोई पेशेंट नेचुरोपैथी में जाता है, योग सेंटर में जाता है जहाँ पे उसको डाइट की एडवाइस दी जाती है, तो पेशेंट मस्ट बी केप्ट ऑन एलिमिनेटिव डाइट एटलीस्ट फॉर 2 to 3 days। तो 3 दिन उसको एलिमेंटिव डाइट पे रखते हैं ताकि उसका जो सिस्टम है वो अच्छे ढंग से काम करे और शरीर से विकारों को बाहर निकालने में मदद करे। उसके बाद सूदिंग डाइट हो गई। सूदिंग डाइट में क्या आता है, फ्रूट्स हैं, सलाद हैं, स्टीम्ड वेजिटेबल्स हैं। तो 2-3 दिन एलिमिनेटिव डाइट पे रखने के बाद पेशेंट को इस डाइट पे रख देते हैं, दैट इज नोन एज सूदिंग डाइट। तीसरी डाइट जो हो गई कंस्ट्रक्टिव डाइट। जब बीमारी ठीक हो गई, पेशेंट स्वस्थ हो गया, नॉर्मल रूटीन पे आने लगा, देन वी प्लेस द पेशेंट ऑन कंस्ट्रक्टिव डाइट। उसमें क्या है, मोटे आटे की रोटी, मोटे आटे से मतलब चोकर सहित आटे की रोटी, बिना पॉलिश किया हुआ चावल दे सकते हैं, थोड़ी सी दाल दे सकते हैं, स्प्राउट्स है, दही है, इस तरह की चीजें जो नॉर्मल शरीर के कंस्ट्रक्शन के लिए बिल्डिंग मटेरियल के रूप में देते हैं। ये इस तरह की जो डाइट है जो एडवाइस की जाती है, शरीर को प्योरीफाई करती है, आपको हेल्दी बनाती है, बीमारी के प्रति आपकी प्रतिरोधक शक्ति को बढ़ाती है और हेल्थ अच्छी स्वास्थ्य रहने के लिए, स्वस्थ रहने के लिए एक संतुलित भोजन आपको जो है वो उससे मिलता है। इसके बाद अगर हम देखें तो मड थेरेपी बहुत इफेक्टिव है। बहुत सारे पेपर्स हैं मड थेरेपी के बारे में भी। सिंपल है, कॉस्ट इफेक्टिव है। नीचे से गहरी 4-5 फुट 6 फुट नीचे की गहरी मिट्टी होनी चाहिए, साफ सुथरी मिट्टी, इसमें कोई केमिकल हो, खाद वगैरह या पत्थर के टुकड़े वगैरह नहीं हो। उसको अच्छे से धूप में सुखा लेते हैं, पीस लेते हैं, छान लेते हैं और उसके बाद उसको यूज करते हैं। मिट्टी का यूज इसलिए अच्छा है कि ये मॉइस्चर को ज्यादा देर तक रिटेन करती है। अदरवाइज मिट्टी नहीं है तो पानी से भी काम चलाया सकता है। कूलिंग इफेक्ट है, ठंडा करती है शरीर को और बहुत आसान है अडॉप्ट करने के लिए। ये कुछ मोड ऑफ ट्रीटमेंट है। प्रेजेंटेशन दिखाने का मतलब यही था कि आपको तस्वीरें दिखा सकूं। तो मड पैक है, पेट पे देते हैं, आंखों पे, माथे पे देते हैं हाई ब्लड प्रेशर वगैरह के केस में। पेट की पट्टी जो है वो कॉन्स्टिपेशन है, फ्लैटुलेंस है, इंडाइशन है। ये साइड में जो फोटो देख रहे हैं मड बाथ के लिए, पूरे शरीर को पे मिट्टी लगा देते हैं। तो डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स के लिए, हेडेक के लिए, हाई ब्लड प्रेशर के लिए, स्किन डिजीज के लिए ये मड थेरेपी देते हैं। आपकी जो इंटेस्टाइनल हीट है, पेट की गर्मी है, उसको शांत करती है, पेरिस्टल्टिक मूवमेंट को बढ़ाती है, शरीर को रिफ्रेश करती है, ठंडा करती है और शरीर में जो टॉक्सिक मैटर जमा है उसको धीरे धीरे एलिमिनेट करने में मदद करती है।
जल चिकित्सा अगर आप देखेंगे तो बहुत एंशियंट है, बहुत सारे स्क्रिप्चर हमारे हैं, पुराने स्क्रिप्चर जिनमें जल चिकित्सा की बात कही गई है। पुराने समय का सबसे सेफ ट्रीटमेंट और पावरफुल ट्रीटमेंट है सॉलिड रूप में, लिक्विड रूप में, स्टीम, तीनों तरह से इंटरनली एज वेल एक्सटर्नली हम इसको यूज करते हैं। ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाता है, हीट को एब्जॉर्ब करता है और वास्ट प्रोडक्ट को शरीर से बाहर निकालने में मदद करता है। इको टेम्परेचर है जो हॉस्पिटल के में यूज किए जाते हैं। ये कुछ ट्रीटमेंट हैं, वैरायटी ऑफ ट्रीटमेंट हैं जल चिकित्सा में, और बहुत सारे पेपर्स इस बात को एस्टेब्लिश करते हैं कि जल चिकित्सा की जो विभिन्न पद्धतियां हैं वो बीमारियों की के निराकरण में कितनी यूजफुल है। तो वही बात हो गया ये। उसके बाद फुट एंड आर्म बात है। यू कैन सी दीज थिंग्स इन नेचर क्योर हॉस्पिटल। स्पाइनल स्प्रे बात है। देन स्टीम बाथ, आपने सबने नाम सुना होगा, स्टीम बाथ इज वेरी पॉपुलर। बड़े बड़े जो 5 स्टार जो जगह है, होटल्स है, उनमें भी आजकल स्टीम बाथ, सोना बाथ का अरेंजमेंट होता है। देन नी पैक है घुटनों के दर्द के लिए, इस तरह से पट्टियां बांधते हैं। देन चेस्ट पैक है ब्रोंकियल एज्मा के केस में, ब्रोंकाइटिस के केस में, खांसी वगैरह है तो इस तरह से चेस्ट पैक दिया जाता है। उसके बाद थ्रोट पैक है, गले की प्रॉब्लम हो, ईएनटी की प्रॉब्लम हो, गले की खराश हो, इवन जो है वो थायराइड वगैरह की प्रॉब्लम में भी कई बार एडवाइस की जाती है। एब्डोमेन पैक है, पेट की जितनी भी समस्याएं हैं, कॉन्स्टिपेशन है, इंडाइजेशन है और बहुत सारी जो चीजें हैं, सब में एब्डोमेन पैक जो है वो यूज करते हैं। तो बेनिफिट क्या है इसका? हाइड्रोथेरेपी का इनर कंजेशन जो है बॉडी में उसको रिमूव करती है, रिलीव करती है, और हमारे जो एलिमेंट्री ऑर्गन्स हैं उनकी एक्टिविटीज को इंक्रीज करती है ताकि वो एलिमिनेशन का काम और अच्छे ढंग से कर सके। कुछ प्रिकॉशन है, गर्म अगर ट्रीटमेंट करेंगे तो इट इज टू बी फॉलोड बाई कोल्ड ट्रीटमेंट, है ना। बहुत लंबे समय तक नहीं करना चाहिए, गर्म पानी का इस्तेमाल ध्यान से करना चाहिए, और अगर पेशेंट बहुत कमजोर है तो अवॉइड करना चाहिए उसको। मसाज थेरेपी एवरीबॉडी नोज, बहुत अच्छा है, बहुत आनंददायक है। अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए हम सब लोग घर में भी मालिश करते ही हैं, कर सकते हैं, और मालिश लेके धूप स्नान करना बहुत कंफर्टेबल है जाड़े के दिनों में। तो ये शरीर की बॉडीज को, ऑर्गन्स को स्ट्रेंथन करता है और ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाता है। बहुत सारी बीमारियां हैं, हाई ब्लड प्रेशर है, लो ब्लड प्रेशर है, ज्वाइंट्स की प्रॉब्लम है, पैरालिसिस है, डिप्रेशन है, पेनफुल कंडीशंस हैं, दुर्बलता है, इंडाइजेशन, सब में मसाज जो है अपनी तरह से हेल्प करता है। क्रोमोथेरेपी, दैट इज ट्रीटमेंट बाय कलर्स। So we know there are 7 colors in sun rays: violet, indigo, blue, green, yellow, orange, red. ये सारी चीजें जो हैं, ये सारे कलर जो हैं वो बीमारी की स्थिति में बहुत अच्छे ढंग से उसको रिकवर करने में मदद करते हैं। बहुत सारी बुक्स हैं क्रोमोथेरेपी के बारे में जो ये बताती हैं कि क्रोमोथेरेपी कितनी यूजफुल है। ये थर्मोलियम है, हॉस्पिटल्स में कई बार होता है, ये अलग अलग तरह के ग्लासेस लगे होते हैं, तो इसके अंदर पेशेंट को बैठा देते हैं एज पर हिज प्रॉब्लम, और उसको एज जैसा कि डॉक्टर का एडवाइस हो उसके हिसाब से उसको पर्टिकुलर टाइम के लिए धूप में बैठना होता है। इसके अलावा जो है पानी को हम धूप में रख के कलर्ड बॉटल में उसको हम यूज कर सकते हैं एज ए कलर थेरेपी। ऑयल जो है उसको धूप में रख के पर्टिकुलर डेज के लिए उसको यूज कर सकते हैं। कलर्ड जो ग्लासेस हैं उसको यूज कर सकते हैं। एंड यू मे बी अवेयर की जो इंटीरियर डेकोरेटर्स होते हैं वो कई बार पूछते हैं साहब ये स्टडी रूम है, इसका कलर कैसा होना चाहिए, क्योंकि कलर्स का अपना एक इम्पैक्ट होता है। अगर आप देखिए, आप सोचिए आपके बच्चे का जो स्टडी रूम है या आपका जो स्टडी रूम है उसमें बहुत ब्राइट कलर आप रखेंगे तो वो आपकी आंखों को चुभेगा और आपका जो कंसंट्रेशन है उसको डिस्टर्ब करेगा। तो हम हमेशा जो है ऐसी जगहों पे कूलिंग जो कलर हैं, जो ठंडे कलर हैं, जो उसमें फोकस करने में मदद करते हैं, उस तरह के कलर जो है वो यूज किए जाते हैं। हॉस्पिटल्स में देखिए व्हाइट कलर होता है, येलोइश कलर होता है, वो कलर थेरेपी जो है उसी हिसाब से उसको, उसके कलर्स को जो है वो यूज करते हैं कि कौन सा कलर हमारे लिए कितना अच्छा है और कौन सा कलर हमारी इरिटेशन को कम करता है। एयर थेरेपी लेने का जो उद्देश्य, हम प्राणायाम करते हैं, मॉर्निंग वॉक करते हैं, तो बेसिक आइडिया है कि हम मैक्सिमम एयर अपने अंदर लें। द प्रॉब्लम इज कि हम जल्दी सब काम करते हैं, हमारी जो ब्रीदिंग है वो भी शैलो ब्रीदिंग है, डीप ब्रीदिंग नहीं करते।
तो डीप ब्रीथिंग करने को आप किसी को कहें तो उसको लगता है कहाँ क्या मुश्किल में पड़ गए, तो क्योंकि जल्दी जल्दी सब काम करने की आदत है। तो अगर हम सफिशिएंट एयर जो है इनहेल करेंगे, डीप ब्रीदिंग करेंगे, तो एयर जो है हमारा जो लंग्स हैं, हमारे लंग्स हैं, उसमें लास्ट पार्ट तक हमको हम जाएगी, और जो वो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का जो वो प्रोग्राम है एक्सचेंज का, वो बहुत अच्छे ढंग से होगा। तो ये जो एयर थेरेपी है वो हमारे जो नर्व एंडिंग्स हैं उनको टोन अप करती है, उनको सूदिंग इफेक्ट देती है, और पूरे शरीर को जो है, आप देखिए कभी आप फ्रेश एयर में हो, कहीं घूमने किसी हिल स्टेशन पे जाएं फ्रेश एयर में, तो कितना कंफर्टेबल लगता है, कितना जो है वो रिलैक्स्ड लगता है। तो नर्वसनेस के केसेस में, न्यूरोस्थेनिया में, रूमेटिज्म में, स्किन की प्रॉब्लम्स में, मेंटल प्रॉब्लम्स में जो है एयर थेरेपी को यूज किया जाता है। योग थेरेपी के बारे में हम सब लोग जानते हैं, बहुत सारी प्रैक्टिसेस हैं, और हंड्रेड्स या थाउजेंड्स ऑफ रिसर्च पेपर्स आर अवेलेबल। अगर आप गूगल पे या इंटरनेट पे सर्च करें, तो इंडेक्स जर्नल में सर्च करें, तो हजारों की संख्या में जो है वो योग थेरेपी पे पेपर्स पब्लिश हो चुके हैं, जो ये एस्टेब्लिश करते हैं कि योग थेरेपी जो है वो कितनी इम्पोर्टेंट है, न केवल शारीरिक व्याधियों के लिए बल्कि मानसिक व्याधियों के लिए भी, और जो इम्पैक्ट है हमारे शरीर पे जो है उसको इम्प्रूव करने के लिए। तो षटकर्मा होते हैं, योगिक आसन है, प्राणायाम है, ध्यान है, सारी चीजें जो है वो नेचुरोपैथी के साथ मिलाकर भी और अलग से भी इनको हम यूज करते हैं। ये षटकर्म हो गया, जलनीति है, धौती है, बस्ती, कपालभाति, नौली, त्राटक वगैरह। सूर्य नमस्कार इज इम्पोर्टेंट। तो द बेसिक आइडिया इज कि योग जो है वो अब हम 6 साल से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भी मना रहे हैं, तो पूरी पूरी दुनिया में मुझे लगता है करोड़ों लोग होंगे जिन्होंने योग को अपने जीवन में इनकॉर्पोरेट कर लिया है, योग को अपने जीवन में उतार लिया है। तो कई बार हम कहते हैं लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन की बात होती है, तो योग और नेचुरोपैथी ऐसी चीजें हैं जिनको हमको अपनी लाइफ स्टाइल का पार्ट बनाना चाहिए। मतलब आप सुबह उठते हैं, आप चाय पीते हैं, ब्रश करते हैं और बहुत सारे काम करते हैं, उसी तरह हमको जो है ये चीजें जो है योग की और इनकी नेचुरोपैथी की, इनको भी अपने जीवन का एक पार्ट बनाना चाहिए, और जिस दिन आप नहीं करें उस दिन लगना चाहिए कि समथिंग इज मिसिंग। सो इन ए नटशेल वी कैन से कि द पिलर्स ऑफ गुड हेल्थ आर एक्सरसाइज, जरूरी है आप योगाभ्यास करें, आप साइकिल चलाएं, आप घूमने जाएं, जॉगिंग करें, जो भी संभव हो, लेकिन रेगुलरली करें। डाइट आपकी सीमित होनी चाहिए, सात्विक होनी चाहिए, संतुलित होनी चाहिए, और पोषक होनी चाहिए, समय से होनी चाहिए। रिलैक्सेशन जरूरी है, हम सब लोग जानते हैं रिलैक्सेशन के बारे में। स्लीप जो है, पर्याप्त निद्रा, 6 से 7 घंटे की नींद जो है वो जरूरी है। देयर शुड बी नो कंप्रोमाइज विद योर स्लीप। दिक्कत क्या होती है कि हम सबसे ज्यादा कंप्रोमाइज जो है वो नींद से करते हैं, रात को देर तक जाग लेते हैं, सुबह देर से उठ जाते हैं, वो सारा हमारा जो क्लॉक है, जो नेचुरल क्लॉक है, वो सारा मैकेनिज्म जो है बिगड़ जाता है। तो मेरा कहना यही है, ये जो पिलर्स है गुड हेल्थ के, पॉजिटिव थॉट्स है, इनको हमको अपने जीवन में अगर हम फॉलो कर पाएंगे और हमारा फोकस जो है वो हेल्थ पे रहेगा, डिजीज पे नहीं रहेगा, तो हम निश्चित रूप से अपने आप को स्वस्थ रख पाएंगे। तो एट लास्ट व्हाट टू डू टू स्टे हेल्दी, अगर स्वस्थ रहना है तो क्या करना चाहिए? फॉलो द लॉज ऑफ नेचर, रिकनेक्ट विद नेचर। हमारा जो नेचर से कनेक्शन है वो खत्म हो गया है, सो वी हैव टू रिकनेक्ट। आप जो पृथ्वी के जो पंच महाभूत हैं उनसे रिकनेक्ट होइए, मिट्टी से, पानी से, धूप से, हवा से और आकाश से। आप देखेंगे कि इसका जो विद इन वीक आपको इसका जो चेंज अपने अंदर जो आपको महसूस होगा। पे अटेंशन टू द लाइफ स्टाइल एंड करेक्ट इट। अगर आपकी लाइफ स्टाइल ठीक नहीं है तो उसको सुधारिए, उसको ठीक करिए। डू रेगुलर एक्सरसाइज, टेक सिंपल फूड एज पर योर एपेटाइट। भूख लगी है तो जरूर खाना खाइए, सिंपल खाना खाइए, और फास्ट वंस इन ए वीक। अवॉइड अनहेल्दी ईटिंग हैबिट्स को दूर रखिए, ऑप्टिमिस्टिक रहिए, प्रॉपर स्लीप लीजिए। अवॉइड स्ट्रेस एंड टेंशन, ये दोनों आपके लिए, आपके शरीर के लिए घातक हैं, इसलिए इनको दूर रखिए। प्रेयर किसी न किसी रूप में जरूर करिए, और जो मेरा जो सिद्धांत है वो फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ प्रिवेंशन इज द ओनली क्योर। अर्लियर वी से प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, बट उसको रिवाइज कर दिया, उसको मॉडिफाई कर दिया, प्रिवेंशन इज द ओनली क्योर। अगर आपने अपनी बीमारी से, किसी बीमारी से अपने आप को बचा लिया तो सबसे बड़ा अचीवमेंट जो है वो है। तो
to conclude, I would like to say that today's dream of illness, now we have to shift from where to where, illness to wellness. बीमारी की बात छोड़ के हमको वेलनेस की तरफ जाना है, और नेचुरोपैथी और योगा सिस्टम जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट की सिस्टम है इस ड्रीम के लिए। आज हम जिस वातावरण में रह रहे हैं, हम सब लोग जानते हैं, हॉस्पिटल्स हैं, सब कुछ ठीक है, सब एवरीथिंग इज ओके, बट वी हैव टू शिफ्ट अवर माइंड, वी हैव टू शिफ्ट अवर थिंकिंग, वी हैव टू चेंज अवर थिंकिंग फ्रॉम इलनेस टू वेलनेस। और वो जो ड्रीम है, वो जो थिंकिंग है, उसमें योग नेचुरोपैथी सबसे इम्पोर्टेंट पिलर है। और आज की थिंकिंग हो सकती है, पर आई होप सो, मुझे पूरा भरोसा है कि ये कल की रियलिटी यही होगी। और हमको बहुत सारे हॉस्पिटल्स की जरूरत है, पर मुझे लगता है उससे ज्यादा हमको जरूरत है आरोग्य केंद्रों की, जहाँ पे लोगों को आरोग्य की शिक्षा दी जाए, जहाँ पे लोगों को स्वस्थ रहने की शिक्षा दी जाए कि कैसे हम स्वस्थ रहें। सो विद दीज वर्ड्स आई वुड लाइक टू थैंक, गांधी जी का एक कोटेशन है, पेशेंस एंड परसिवरेंस इफ वी हैव देम ओवरकम माउंटेन्स ऑफ डिफिकल्टीज। सारी मुश्किलें जो है वो मुश्किलों के पहाड़ जो है, हमको उन पे विजय प्राप्त कर सकते हैं अगर हमारे अंदर धैर्य और परसिवरेंस है। तो मैं आपकी जो फैकल्टी है, डॉक्टर पाठक जी हैं, डॉक्टर अर्पिता नेगी जी हैं, डॉक्टर विशंबर जी हैं, अपने योगा स्टडीज डिपार्टमेंट के जो चेयरमैन सर हैं, और रिस्पेक्टेड जो वीसी सर हैं, और मैडम रीता भल्ला जी भी हैं, मेरी गाइड रही हैं वो, और अर्लियर एचओडी भी थी डिपार्टमेंट की, उनको भी मैं नमस्कार करता हूँ और सबको धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद सर सुबोधपूर्ण व्याख्यान के लिए। वो है कि बड़ी विचित्र स्थिति जो आज उत्पन्न हुई थी, में यह है कि बाधाएं कब बांध सकी है आगे बढ़ने वालों को, तो वो बाधाएं तो दूर हुई और हम बड़े सुरुचिपूर्ण ढंग से आपका व्याख्यान सुन पाए। ये इस व्याख्यान माला में कम से कम 250 से के लगभग लोग होते हैं, यूट्यूब पे भी जाते हैं, लेकिन आज लाइव हम लगभग 84 लोग ही जुड़ पाए थे, बाकी हमने यूट्यूब पे इसको ले लिया है। भविष्य में हम आपके इस व्याख्यान से लाभान्वित रहेंगे। और मैं लोगों को बताना भूल गया कि आप एक प्राकृतिक चिकित्सा के रूप में जो आपका योगदान है, अभी भी इंडियन काउंसिल ऑफ योगा एंड नेचुरोपैथी, उसको कभी भूल नहीं पाएंगे लोग। तो ये देश और विदेश में जो आपने इस प्रकार की सेवाएं की है, मैं चाहता हूं कि कुछ लोगों के प्रश्न होंगे, वो जरूर आप अपने प्रश्न पूछ सकते हैं सर से, कुछ की जिज्ञासाएं हैं। मोस्ट वेलकम। कोई सवाल हो तो बताइए। और सबसे बड़ी चीज, अब वो घर की चीजें जो है, लोग कैसे रहें, ये बड़ा आवश्यक है। कहीं कुछ करने की आवश्यकता नहीं, ये आपका जो प्रभावी रहा, हमारे ख्याल से लोग समझ गए कि हमें स्वयं में नियंत्रण तो सब में नियंत्रण है सर। चलिए प्रश्नों के लिए कौन कौन है? सर मेरा क्वेश्चन। हाँ जी, एक बारी से। हाँ जी, मनमोहन जी पहले चलिए। सर मेरा प्रश्न था कि क्या सर्दियों में सर, जैसे विंटर्स होती हैं, उस समय भी सर हमें रात्रि को उपवास करना चाहिए सर, अगर कुछ मतलब सर दर्द हो जाए, कुछ हो जाए? नहीं, देखिए, उपवास का जो कंसेप्ट है ना, उपवास का कंसेप्ट तो रात से मतलब नहीं है। उपवास का मतलब कि आपको भोजन नहीं करना है, या भोजन की जगह खाली रसाहार करना है या फलाहार करना है, तो वो डिपेंड करता है कि आपकी प्रॉब्लम क्या है। सपोज आप हेल्दी हैं, आपको प्रॉब्लम नहीं है ना, आपको कोई दिक्कत नहीं है, तो हम एडवाइस करते हैं नेचुरोपैथी में, योग में, कि भाई आपको जो है दिन भर फलाहार करना है। फलाहार का मतलब दिन में 2 बार आप भोजन करते हैं, 2 बार भोजन की जगह आप फल ले लीजिए। तो एक बार सुबह का हो गया दोपहर के समय, एक बार शाम को हो गया। शाम का जो फलाहार है वो हम सब लोग जानते हैं कि जो उसका निश्चित समय है वो सूर्यास्त के आसपास का होना चाहिए। बहुत रात को 9 बजे अगर हमने खाना खाया, 10 बजे खाया गया, उस भोजन का कोई औचित्य नहीं है, ना वो शरीर के लिए किसी तरह से आपको मदद करेगा। तो उपवास या फलाहार से मतलब ये है कि आप शाम को 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे अपना फल वगैरह जो भी लेना है ले लें। कई बार लोगों को दिक्कत होती है कि सर हम शाम को फल नहीं ले पाएंगे, कोई बात नहीं, तो आप ऐसा कर सकते हैं कि दोपहर को फल ले लीजिए, शाम को दलिया और सब्जी ले लीजिए, इस तरह की चीजें ले लीजिए। जितना हल्का भोजन रहेगा शाम का उतना अच्छा है। तो कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि भाई ये लिखा है या ऐसा कहा है, ऐसा ही करना है। आप अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हैं। बेसिक आइडिया है कि हमको स्वस्थ रहना है, स्वस्थ रहने के लिए ये करिए, उससे स्वस्थ रहें।
स्वस्थ रहने के लिए ये करिए, जिससे भी आप स्वस्थ रहें। द कंसेप्ट इज दिस कि यू हैव टू बी हेल्दी। हमको डिजीज पे ध्यान नहीं देना है, अपने स्वास्थ्य पे ध्यान देना है। जी जी, और बताइए। थैंक यू और सर, बोलिए। अगर हमें आंखों में जलन हो तो क्या करना चाहिए? सर, रेडनेस आंखों में, होती है ना, मतलब कॉन्टिन्यूस रेडनेस, और उसकी वजह से एक साइड हेडेक हो जाती है। जी नहीं, तो आप उसकी अपने लिए वजह पूछ से। रहे हैं? यस सर। अच्छा, आप क्या स्टूडेंट हैं? यस सर। ओके, तो देखिए क्या होता है ना मैडम कि आंखों में जलन के बहुत सारे कारण हैं, है ना। हम तो नेचुरोपैथी में, योग में मान के चलते हैं कि सारी जो प्रॉब्लम्स हैं सबका कारण जो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है। तो पेट को ठीक रखना चाहिए, भोजन हल्का होना चाहिए, और आंखों की जो इमीडिएट प्रॉब्लम है, जैसे आप मान लीजिए कंप्यूटर पे काम करते हैं, लगातार काम करते हैं, सो देयर आर सो मेनी एक्सरसाइजेस। आप हर 20 मिनट पे, आधे घंटे में ब्रेक दे दें उसको, आंखों को रिलैक्स करें, आंखों को, सिर को पीछे ले जाके आंखों पे ठंडी पट्टी रख लें। अगर मिट्टी की पट्टी की व्यवस्था हो सकती है तो आप संडे को छुट्टी के दिन मिट्टी की पट्टी भी रख सकते हैं, साफ सुथरी मिट्टी की पट्टी, और नहीं तो ठंडे पानी की पट्टी रखिए। तो इससे क्या होगा, धीरे धीरे आंखों की जलन भी कम होगी। त्रिफला आप जानते होंगे, हरड़ बहेड़ा आंवला, रात को उसका यस पानी सर। भिगो दीजिए। हाँ, उसका पानी भिगो दीजिए रात को, उसका पाउडर जो है किसी एक गिलास पानी में। सुबह एक आई कप आता है, मार्केट में मिल जाएगा आपको, मेडिकल स्टोर में। तो आई कप में उसका पानी छान के उससे आंख को धोइए, और अदरवाइज भी आंखों पे छींटे मारिए, आईज एक्सरसाइज करिए, बहुत सारी चीजें हैं। कोई ऐसा बड़ा इशू मुझे नहीं लग रहा है। अगर आप इसको करेंगे, और 10-15 मिनट का समय लगेगा। जलनेती बहुत अच्छी चीज है, जलनेती भी कर सकते हैं, आप जानते होंगे। यस सर। वो करिए तो ठीक यस हो सर। जाएगा। जी और सर, आपने अभी फास्टिंग के लिए कहा कि हम डिफरेंट डिफरेंट उस पे करते हैं, कोई पूर्णिमा पे या किसी चीज पे, तो हर एक दिन का अलग फास्टिंग का अलग प्रभाव होता है? नहीं नहीं मैडम, मैं तो उसको इसलिए कहा कि हमारा जो ट्रेडिशनल, हमारे जो रिलीजियस रेफरेंसेस है ना, शुरू से हम उपवास करते आए हैं। कभी पूर्णिमा का उपवास हो गया, कभी यस सर। अमावस्या का, सोमवती, वैसे बहुत सारे उपवास है। अदरवाइज भी लोग मंगलवार का उपवास करते हैं। तो मेरा सिर्फ कहना यह है कि हमारे सिस्टम के हिसाब से हमको सप्ताह में एक दिन उपवास जरूर करना चाहिए। वो उपवास जो है वो यस। पूर्ण उपवास भी हो सकता है, आधा उपवास। जैसे जैसे कोई वर्किंग है, उसको लगता है कि मैं पूरे दिन शायद खाली पेट नहीं रह सकता, तो कोई बात नहीं, आप एक समय फल खा लो, एक समय भोजन कर लो, लेकिन भोजन जो है हल्का होना चाहिए। उपवास का ये मतलब नहीं है कि आज तो सर ने कहा है उपवास करने को, तो कल रात से हमने कुछ इतना ज्यादा खा लिया कि वो अगले दिन का कोटा जो है पूरा हो गया। ऐसा नहीं होना चाहिए। इट शुड बी यस सर। टेकन इन दैट पर्सपेक्टिव ओनली। थैंक यू सर। उपवास से पहले गीतांजलि जी ना, उपवास के दिन दान भी करना चाहिए जो। हाँ हाँ मेरा एक क्वेश्चन था सर, एक और। जी जी मनमोहन जी, सर जैसे आप बात करते हैं, जैसे ग्रीन वाटर बॉटल और ये वाटर बॉटल, इनमें अगर पानी रखें तो सर क्या है सच में सर, जैसे येलो वाटर बॉटल होगी, और अगर सेलिफोन पेपर यूज करके व्हाइट मतलब कांच की बोतल बांध के अगर उसको धूप में हाँ, रखें, नहीं तो इफेक्टिव होगा? उसको इफेक्टिव है, वो उसका तरीका है। सपोज देखिए, बेसिक कलर जो है ना, जैसे मैंने आपको 7 कलर गिनाए, रेड, ग्रीन, ब्लू और येलो, ये 4 बेसिक कलर हम मानते हैं क्रोमोथेरेपी में। तो अगर इन चारों रंगों की बोतल आपको कांच की मिल जाए तो सबसे अच्छा है। नहीं मिलता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप कांच की व्हाइट बॉटल ले लीजिए, सफेद रंग की बॉटल कांच की। उस पे अगर आपको रेड कलर का पानी तैयार करना है तो रेड कलर की जो पन्नी आती है, सेलोफेन पेपर, उसको आप ऊपर से लपेट दीजिए, उसमें पानी भर दीजिए, उसको एक वुडन प्लेटफॉर्म पे, लकड़ी के टुकड़े पे 9 बजे सुबह धूप में बाहर रख दीजिए, शाम को 5 बजे उठा लीजिए। दैट इज रेड कलर्ड चार्ज वाटर। पानी का कलर रेड नहीं होगा, ऐसा नहीं कि आपने पन्नी लगाई तो पानी का कलर लाल रंग का हो गया, पानी वैसे ही रहेगा, बट वी बिलीव दैट उसमें रेड कलर की जो प्रॉपर्टीज है वो आ गई है। तो रेड कलर हम यूज करते हैं जहां शरीर को गर्मी देनी होती है, जैसे ज्वाइंट्स में पेन है किसी को, तो हम रेड कलर का पानी यूज करेंगे। अब किसी को अगर सिर में दर्द है, आपने रेड कलर का पानी उसके सिर पे पट्टी रख दी तो उसका दर्द बढ़ जाएगा। तो वहां पे हम कूलिंग इफेक्ट जो है, जो ब्लू कलर है वो कूलिंग इफेक्ट है। किसी को नींद नहीं आ रही है तो आप नीले रंग का पानी उसको दे दीजिए। या आपने देखा होगा ना कि रात को जो बल्ब लगाते हो, ब्लू कलर का बल्ब लगाते हैं, वो कूलिंग इफेक्ट उसका है, सेडेटिव इफेक्ट है। वो धीरे धीरे आपकी जो इरिटेशन को, आपकी एंजाइटी को, आपके उसको गुस्से को कम करता है, इसलिए इस तरह से कलर को यूज करते हैं। सर, ये जो बॉटल्स है जी, ये नॉर्मली मार्केट में मिल जाएगी और नॉर्मली आप यूज कर सकते हो, मतलब कोई हाँ, साफ ऊपर सुथरी से बॉटल होनी चाहिए, साफ बॉटल होनी चाहिए, ग्लास की होनी चाहिए, प्लास्टिक वाली नहीं।
और जैसे हाँ कि जी मैंने सर, बताया, वही कह अगर रही आपको कलर वाली नहीं मिलती तो व्हाइट यूज कर सकते हैं, उसके ऊपर पन्नी लगा लीजिए। सर लेकिन ये जरूरी है कबाड़ी की दुकान पे सारे कलर लकड़ी का मिल ढक्कन जाएंगे। होना चाहिए, लकड़ी का ढक्कन वो मेन हो कि लकड़ी का ही ढक्कन नहीं होना नहीं, चाहिए उसके। लकड़ी का घर में लकड़ी का कोई टुकड़ा होगा ना, उस पर रख दीजिए उसको। लकड़ी जो है वो इसलिए यूज करते हैं कि बैड कंडक्टर है वो, इसलिए उसको यूज करते हैं। और अगर आप, जैसे ये तो पानी के लिए बताया, यू कैन प्रिपेयर वाटर डेली। आप सुबह 9 बजे रख दीजिए, शाम को 5 बजे उठा लीजिए, अगले दिन उसको यूज कर लीजिए और नेक्स्ट डे आप फिर बना लीजिए। आप जब इसको यूज, देखिए इसको यूज करने में कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से कर सकते हैं। अगर पेट की समस्या है तो येलो कलर का पानी ले लीजिए, वो उसमें एक्टिवेट करता है डाइजेस्ट सिस्टम को। तो ये तो चीजें देखिए समझने की हैं, समझ के जब आप हम इसको इस्तेमाल करेंगे तो उसका बेनिफिट हमको मिलेगा। सर सर, अगर thank you, sir. कांच की बोतल को सर अगर हाँ। कांच की बोतल को हम रेड कलर कर दें तो नहीं चलेगा? नहीं नहीं मैडम, वो तो पेंट हो जाएगा ना, आर्टिफिशियल हो जाएगा फिर वो। पेंट से फिर आप उसको रेड कलर का जो पेंट होगा ना, या तो रेड कलर की हो, क्योंकि पेंट आप ऊपर से करेंगे। अगर रेड कलर की बोतल कहीं मिल जाए आपको तो वो तो जब बोतल बनती है ना कांच की, उसी में रेड कलर यूज हो जाता है, तो पेंट का ज्यादा अच्छा नहीं रहेगा। इट इज बेटर कि हम उसको ऊपर से पन्नी लगा के यूज कर लें। ओके सर। सर और कोई जी सर कफ के लिए सर कुछ बता सकते हैं सर? कफ के लिए तो बहुत अच्छी चीजें हैं सर। देखिए मेरी एडवाइस आप लेंगे तो कफ अगर है तो कफ का मतलब है कि नेचर इज ट्राइंग टू एलिमिनेट मॉर्बिड मैटर फ्रॉम योर बॉडी। तो उसने कफ के रूप में इंसिस्ट किया कि शरीर से कफ जो है बाहर निकल जाए, है ना। तो एक तो मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट हम लोग यूजुअली अवॉइड करते हैं, क्योंकि मिल्क के लिए मानते हैं कि वो कफ को प्रोड्यूस करता है ना। एक तो उसको कम कर दीजिए। कुंजल करना अगर आप जानते हैं तो कुंजल कर सकते हैं। मैंने एक छाती की लपेट, चेस्ट पैक करके एक फोटो दिखाई थी आपको, वो कफ के लिए बहुत अच्छी है, आप उसको यूज कर सकते हैं। गुनगुना पानी पीजिए, उसमें थोड़ा शहद मिला लीजिए, उस तरह से कर सकते हैं। जी सर छाती का लपेट कैसे करेंगे उसको थोड़ा सा बता देंगे? हाँ, छाती के लपेट के लिए एक लंबी पट्टी ले लीजिए सूती कपड़े की। जैसे आप समझिए कि 1 फीट लंबा सूती कपड़ा, 1 फीट चौड़ा और करीब 3 मीटर लंबा, ऐसा कपड़ा ले लीजिए। सूती कपड़ा, खादी का हो तो बहुत अच्छा है। कपड़ा ऐसा होना चाहिए पानी को एब्जॉर्ब करे। और इसी सेम साइज की आपको एक ऊनी पट्टी बनानी होगी। ऊनी पट्टी नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, घर में कोई पुराना शॉल वगैरह होगा उससे आप पट्टी बना लीजिए। सूती पट्टी जो है कपड़े वाली, उसको आपको पानी में डिप करके निचोड़ लेना है, अच्छे से पानी में निचोड़ लीजिए। उसके बाद आप अपने जो चेस्ट का एरिया है उस पर आप उसको लपेट लीजिए 3-4 बार सर्किल में। जहां पट्टी खत्म हो जाए वहां उसको सेफ्टी पिन से बंद कर दीजिए। उसी के ऊपर जो है ऊनी पट्टी, सूखी, पानी की कपड़े वाली पट्टी जो है वो गीली रहेगी, निचोड़ी हुई, ऊनी पट्टी सूखी रहेगी, उसको लपेट दीजिए। इस तरह से एयर टाइट कर दीजिए कि वो सूती पट्टी बिल्कुल उससे ढक जाए। इसको आप 45 मिनट्स के लिए रखिए और उसके बाद खोल दीजिए। खोलने के बाद जो है सूती पट्टी को साबुन से धो के सुखा लीजिए और ऊनी पट्टी को धूप में डाल दीजिए। नेक्स्ट डे अगेन यू कैन यूज। इट इज वेरी सिंपल। 1 घंटे के लिए रखना है इसको। खाली पेट रखेंगे तो बहुत ही अच्छा है, मतलब खाली पेट सर पानी जो रहेगा जिसमें अपन कपड़े को भिगोएंगे, गर्म रहेगा या ठंडा रहेगा? नहीं, नॉर्मल। अभी जो है इस समय अगर आप यूज करेंगे तो नॉर्मल जो नल का पानी आता है वो यूज करिए। सर वो शिमला के हिसाब से भी तो चाहिए। मेरा क्वेश्चन, अब आप शिमला मुझे बुलाएंगे तो मैं आके बताऊंगा वहां जा। नहीं, मैं कह रहा था ना कि क्योंकि प्लेन में अभी गर्मी है और यहाँ पे अभी भी नॉर्मल वाटर से कोई नहा ही नहीं, थोड़ा सा गुनगुना ले सकते हैं, अभी भी थोड़ा सा गुनगुना ले सकते हैं। जी हाँ, चलिए और कोई? सर मेरा क्वेश्चन है सर, मेरी दीदी की रोशनी चली गई सर, दोनों आंखों की। तो सर 15-16 साल हो गई। तो सर ऐसा क्या करे जिससे उम्मीद बने कि कुछ हो सकता है? डॉक्टर ने बोला कि रेटिना आपका आई रियली अंडरस्टैंड। पर देखिए वो ये जो प्रश्न है ना, इसका जवाब तो ऐसे नहीं दे पाना संभव होगा अंटिल सारी चीजें पता नहीं हो, है ना। और आपकी जो दीदी, उनकी केस हिस्ट्री क्या थी, क्या कारण था, किस वजह से हुआ, आई थिंक वो सारी चीजें जान के कुछ जो इसमें संभावना हो सकती है। पर मैं एक चीज आपको जरूर कहना चाहूंगा कि बहुत सारे सिस्टम्स हैं अपने देश में, सबकी अपनी अपनी सीमाएं हैं, हमारी भी अपनी लिमिटेशंस हैं। पर मेरा सिर्फ कहना यह है कि बहुत सारे एक्स्ट्राऑर्डिनरी केसेस में, डिसअपॉइंटेड केसेस में, जहाँ पे कोई किसी को आराम नहीं मिलता, वहां भी योग से और प्राकृतिक चिकित्सा से लोगों को आराम मिलता है। तो इफ यू हैव फेथ एंड कॉन्फिडेंस तो निश्चित रूप से आपको कुछ ना कुछ मदद मिलेगी।
और अगर आप ठीक समझें तो मुझे बाद में एक बार अपनी दीदी की रिपोर्ट वगैरह बताएंगे, तो मैं देख के फिर बता पाऊंगा आपको कि क्या करना चाहिए। यस सर। ओके सर, थैंक यू। सर एक क्वेश्चन था जी। सर, मेरे पापा की तबीयत ना मतलब काफी दिनों से खराब रह रही है। उनको जैसे कुछ दिनों बाद वॉमिटिंग हो रही है ना, और कभी कभी उनका ऐसे हो रहा है कि उनका कुछ खाने पीने का मन नहीं कर रहा है अंदर से। जी। तो सर इसके लिए कुछ हो सकता है? कितनी उम्र है उनकी? सर उनकी 50 के आसपास है। क्या करते हैं? टीचर है सर। ओके। तो अभी जो आपने समस्या बताई उसकी और कोई बात है? नींद वगैरह उनकी कैसी है? पेट ठीक रहता है कि नहीं? सर कभी कभी उनको नींद भी नहीं आती है। जब से उन्होंने वैक्सीन लगाई ना सर, उसके बाद से उनकी तबीयत तो ज्यादा खराब हो गई। मतलब 3 दिन हुए ना वैक्सीन लगा के, उसके बाद से उनकी तबीयत कुछ तो ठीक है, कोई बात नहीं मैडम, हो सकता है वैक्सीन की वजह से कुछ डेवलप हुआ हो, है ना। 1-2 दिन और वेट कर लें उसको, है ना। तो ऐसी तो कोई दिक्कत सर काफी टाइम हो गया, 1 मंथ का टाइम हो गया। अच्छा, तो फिर ऐसा करिए आप सर जो है वो मेरा नंबर आपको दे देंगे, तो लेट मी डिस्कस यू इन डिटेल, है ना। मैं थोड़ा सा पूछूंगा, उसके बारे में फिर आपको बता पाऊंगा। ठीक है ना, मेरा नंबर सर से ले लीजिएगा, आप मुझे कभी भी कॉल कर लीजिए, मैं बताऊंगा आपको। ओके सर, कई चीजें मैं और पूछूंगा, उसके बाद फिर बता पाऊंगा। ओके सर। नमस्कार सर। नमस्कार सर। हाँ नमस्ते जी। लो अपना नाम भी बताइए आप सभी। मैं डॉक्टर चेतना पांडे हूँ सर। और एक प्रश्न है, आपने कहा कि पीली बोतल का जो पानी है वो कॉन्स्टिपेशन के लिए, कब्ज के लिए है, तो वो उसको पिया जा सकता है और पेट पे भी रखा जा सकता है पट्टी के रूप में? पेट पे भी रख सकते हैं, लेकिन मोस्टली पीने के लिए ज्यादा यूजफुल है वो। पीने के पेट पे तो ठंडे पानी की पट्टी रख लीजिए या मिट्टी की पट्टी रख लीजिए, लेकिन आधा कप पानी जो है ना वो आप खाना खाने से पहले दोपहर को और शाम को वो पी लीजिए, जो है वो ज्यादा अच्छा रहेगा जी। सर मेरी मदर 69 ईयर की हैं और कॉन्स्टिपेशन उनको इधर बीच 1 महीने से लगातार वो हॉस्पिटलाइज भी थी, घर आ गई, हालांकि ठीक है, लेकिन फिर 2-3 दिन बाद फिर उनको कब्ज हो जाता है, इसबगोल वगैरह दी जा रही है, तो ये पानी उनके लिए फिर ठीक रहेगा उनको दूं? हाँ पानी तो दे ही सकते हैं, और उनको जैसे कि मैंने बताया ना आपको, ठंडे पानी की पट्टी वगैरह है वो भी दे सकते हैं। अब कुछ एक्सरसाइज वगैरह अगर करने की स्थिति हो, अब मुझे नहीं पता है ज्यादा, लेकिन कुछ ना कुछ उनको एक्टिविटी कराइए। पट्टी तो रख ही सकते हैं और पानी पीने के लिए भी दे सकते हैं, उसमें कोई आपत्ति दिक्कत नहीं है। थोड़ा उनका जो भोजन है उसमें रफेज वाली चीजें ज्यादा हों जी। पानी ये खाली पेट देना है? पानी खाना खाने से आधे घंटे पहले। अच्छा, धन्यवाद सर। ठीक। सर अगर आपका शरीर वात प्रवृत्ति का हो तो कौन सा पानी पीना चाहिए? मैडम ये जो वात पित्त कफ वाली बात है ना, वो कंसेप्ट हमने अपने यहाँ नहीं लिया है योग और प्राकृतिक चिकित्सा में। तो इसलिए वात की दृष्टि से तो मेरे लिए बताना संभव नहीं होगा, लेकिन जो प्रॉब्लम है उसके हिसाब से आप बताएंगे, क्योंकि वात के फिर और बहुत सारे लक्षण होते हैं। अब कई चीजें मैच नहीं करती दूसरे सिस्टम के साथ जो है, तो मैं अपने सिस्टम की बात तो कर सकता हूँ जी। नॉर्मल हेल्दी पर्सन यूजुअली कैसा? नॉर्मल अगर कोई व्यक्ति है तो उसको तो जरूरत ही नहीं है। नॉर्मल अगर कोई स्वस्थ आदमी है तो उसको कोई क्या आवश्यकता है, फिर अननेसेसरी क्यों ले? वो फिर भी लेना चाहता है तो पीली बोतल का पानी अच्छा है, उसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं है। कोई स्वस्थ आदमी भी लेना चाहे तो कोई हर्ज नहीं है जी। थैंक यू सर। सर नमस्कार सर, मेरा एक प्रश्न है। मेरे मम्मी है सर, वो 48-49 के करीब है, तो सर उनको ना लेग्स में प्रॉब्लम हो गई है लास्ट 1 और 2 मंथ से। वो बहुत होती है सर, वो कई बार चल भी नहीं सकते सर। बैक में होती है पहले, फिर टांगों में होती है सर, तो उनके लिए थोड़ा कुछ आप बताइए। नहीं, क्या उनको कहीं दिखाया आपने किसी डॉक्टर को हॉस्पिटल में? कुछ बताया किसी ने? नहीं सर, अभी पीछे तो दिखाया था, उन्होंने कहा कि शट्टिका होती है कोई, उसकी पेन हो गई है उनको। कौन सा साइटिका? यस सर। तो मैडम कुछ योग की एक्सरसाइज है? आप तो कहाँ, ये यूनिवर्सिटी में ही है ना? नो सर, अभी तो गांव में सर। हाँ जी हाँ जी। ओके, कोई बात नहीं। तो आप अपने गुरुजी लोग हैं, उनसे कोई योग की जो एक्सरसाइज है साइटिका के लिए वो सीख लीजिए। नेचुरोपैथी में हम कई बार क्या करते हैं कि जहाँ पेन है, पेनफुल कंडीशन में हॉट एंड कोल्ड फर्मेंटेशन करते हैं, गर्म और ठंडी सिकाई।
तो गर्म सिकाई के लिए एक बर्तन में गर्म पानी लेंगे और ठंडे के लिए बर्तन में ठंडा पानी। ठंडा भी उतना ही हो जितना टॉलरेबल हो, गर्म भी उतना जितना टॉलरेबल हो। तो एक छोटे टॉवेल को गर्म पानी में डुबो के निचोड़ के उसको जहाँ पे पेनफुल है वहां पे फैला दीजिए उसको। दिस इज फॉर 3 मिनट्स। 3 मिनट बाद उसको हटा दीजिए और ठंडा एक टॉवेल जो है निचोड़ के वहां पे रख दीजिए। तो ये 3 और 1 का रेशियो रहेगा। 3 मिनट गर्म, फिर 1 मिनट ठंडा, फिर 3 गर्म, फिर 1 ठंडा, लास्ट में फिर 3 गर्म और 1 ठंडा। ये करिए, ये सुबह शाम कर सकते हैं। और साथ में सर जो बताएं गुरुजी एक्सरसाइज वगैरह वो जरूर कराइए और थोड़ा उनका खाने पीने का भी ध्यान रखिए। कोई ऐसी चीजें जो एल्कलाइन चीजें हैं, जो सब्जी वगैरह है, फल वगैरह, वो चीजें ज्यादा अगर लें तो अच्छा है। रफेज वाली चीजें ज्यादा लें तो अच्छा है। प्राणायाम वगैरह ये सब चीजें करेंगे तो निश्चित रूप से आराम मिलेगा उससे। वैसे सर उनको एक्सरसाइज भी नहीं करवा सकते ज्यादा, उनका ऑपरेशन भी हुआ है ना सर। कोई बात नहीं मैडम, जो आराम से। ऑपरेशन कब हुआ उनका? सर टाइम तो काफी हो गया, 17 में हुआ सर लास्ट ऑपरेशन उनका। आराम से बैठ के कंफर्टेबली जो कर सकते उतना ही करेंगे, कोई फोर्सफुली नहीं करना है। बहुत सारे ज्वाइंट्स के मूवमेंट हैं, बहुत सारे सूक्ष्म व्यायाम हैं, है ना, वो सब कर सकते हैं। आराम से बैठ के कर सकते हैं, बिस्तर पे बैठ के, चेयर पे बैठ के, उनको कराइए। नहीं सर वैसे तो एक्टिव है, पर जब टांगों में दर्द होती है ना फिर एकदम से वो ऐसे हो जाते हैं। वैसे तो घर का काम कर लेते हैं, काफी एक्टिव है सर, पर वो फिर दर्द हो जाती है। हाँ नहीं, आई अंडरस्टैंड कि लेकिन कुछ ना कुछ तो शुरू करना पड़ेगा ना। कुछ करेंगे तो उसका रिजल्ट भी मिलेगा। अब कई बार क्या होता है ना, जैसे एक ओबेसिटी का पेशेंट है, उसको कहा कि भाई आपको रोज 2 किलोमीटर टहलना चाहिए, है ना। अब उसको ओबेसिटी भी है, साथ में घुटनों में दर्द भी है। तो घुटनों में दर्द है इसलिए वो टहलने नहीं जाता, टहलने नहीं जाएगा तो वजन नहीं कम होगा। तो चीजें तो इसी तरह से कॉम्प्लिकेटेड हैं। सो वी हैव टू स्टार्ट एनीवेयर। कहीं ना कहीं शुरुआत हो सकता है 5-10 मिनट से शुरू करें, धीरे धीरे उसको एक्सटेंड कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। लेकिन ये आप निश्चित रूप से समझिए कि इससे आपको फायदा मिलेगा उनको, अगर हम करेंगे तो। ओके थैंक यू सर। सर मेरा क्वेश्चन है सर मेरा क्वेश्चन है कि मड थेरेपी किस आयु वर्ग से शुरू की जा सकती है? क्या चीज? मड थेरेपी। हाँ, मड थेरेपी किस आयु वर्ग से शुरू की जा सकती है? किस अवस्था से शुरू की जा सकती है? इस आयु से शुरू की जा सकती है, जैसे वो पूछे कि आयु से, नहीं आयु से उससे क्या मतलब। हम तो कोई मरीज है 15 साल का है तो भी हम दे देंगे उसको, 25 साल 50 साल का है तो भी दे देंगे। बहुत ही छोटा बच्चा है तो वो उसके लिए तो संभव नहीं है, इसलिए उसको नहीं देंगे जी। ओके सर। ऐसा कुछ उसमें नहीं है। देखिए बहुत सी चीजें होती है ना, वो तो आपको मरीज जब सामने होता है ना तो उसको देख के ही तय करनी पड़ती है कि भाई क्या करना है इसके साथ। तो वो थोड़ा सा ध्यान में रखना होगा। जी बताइए सर। हाई बीपी के लिए कुछ नेचुरोपैथी में है तो? नहीं, हाई बीपी के लिए तो सब कुछ है भाई। हाई बीपी के लिए आप योग करिए, उसके लिए क्या करवाना चाहिए? हाँ जी जी सर, उसके लिए क्या करवाना चाहिए सर? हाँ, रिलैक्सेशन है, शवासन है, ध्यान है ना। और नेचुरोपैथी का जहां तक सवाल है, उसमें एक तो हम लोग हॉट फुट बाथ एडवाइस करते हैं। हॉट फुट बाथ का मतलब एक बाल्टी में गुनगुना पानी लीजिए, पानी उतना ही गर्म हो जितना आपको कंफर्टेबल लगे। रात को सोने से पहले दोनों पैर उसमें डाल दीजिए बाल्टी में, ठीक है ना। एक तौलिए को छोटे तौलिए नैपकिन को पानी में निचोड़ के सिर पे रख लीजिए। सो ये काम आपको 10 मिनट के लिए करना है। 10 मिनट के लिए गुनगुने पानी में दोनों पैर रखने हैं बाल्टी में और सिर पे गीला तौलिया रखना है। 10 मिनट बाद दोनों पैरों को निकाल लीजिए, पानी से धो लीजिए, पोंछ लीजिए और सो जाइए। एक तो ये काम करिए। दूसरा, आपकी जो लाइफ स्टाइल है, आप जिसके लिए भी पूछ रहे हो, इट शुड बी वेरी रिलैक्स एंड कंफर्टेबल। बहुत सारी जो फालतू की चीजें हैं, एंजाइटी है, टेंशन है, उस सब को अपने से दूर करिए। प्रेयर बहुत अच्छा है, पूजा करिए, आसन है, प्राणायाम है, ध्यान है ना, वो सारी चीजें करिए। सुबह घूमना, पॉजिटिव थिंकिंग, ये सारी चीजें करेंगे। और सबसे जरूरी है कि आपका जो खान पान वो अच्छा हो। बहुत सारी ऑयली चीजें नहीं खानी है, फास्ट फूड है, वो चीजें अवॉइड करिए। चाय अगर ज्यादा पीते हो तो कम करिए। साल्ट अगर नमक ज्यादा लेते हो तो उसकी मात्रा भी घटाइए। कम कर सकते हो तो बहुत अच्छा है, मतलब बंद कर सकते हो तो बहुत अच्छा है, नहीं तो मात्रा कम करिए। तो कुल मिला के एक शेड्यूल बनाना पड़ेगा। हाई ब्लड प्रेशर कितना रहता है वैसे? सर अराउंड 130 से ऊपर रहता है।
130 तो ज्यादा नहीं, एज कितनी है पेशेंट की? सर 64-65 के अराउंड है। हाँ तो ठीक है यार, 64 के हिसाब से तो 130 तो सही है। एनीवे फिर भी आप ये चीजें करिए तो ठीक रहेगा। ठीक है सर। देखिए ओके सर, थैंक प्रॉब्लम यू। इसकी प्रॉब्लम क्या है कि हम कल की बात करते हैं, टुडे इज विद अस, है ना। खुश रहना है तो हम सोचते हैं कल खुश हो जाएंगे, कल हम बड़ी गाड़ी खरीद लेंगे तो बहुत अच्छे खुश हो जाएंगे। अरे आज क्यों नहीं खुश होते भाई, कल जब होगा तो कल दोबारा खुश हो जाएंगे। सो जो हैप्पीनेस है इट इज विद इन यू, विद यू, है ना। सो डोंट एस्केप फॉर टुमारो। कई बार होता है ना कि हम कल ये कर लेंगे, परसों ठीक है, कल आप करेंगे नहीं करेंगे, बट व्हाट टुडे इज अवेलेबल विद यू। आज का दिन तो हमारे अपने पास है, कल का क्या होगा पता नहीं जाए। तो वो चीजें थोड़ा सा उनको समझाइए, पॉजिटिव थिंकिंग रहेगी, ऑप्टिमिस्टिक थिंकिंग रहेगी तो चीजें बहुत आसान हो जाती हैं। सर जो सिर पर अस्थमा पेशेंट के लिए ठंडे पानी का हो सर या गर्म पानी से? अस्थमा पेशेंट के लिए क्या करें? हाँ जी सर, अस्थमा पेशेंट जैसे सर आज भी मौसम खराब है ना, तो सर पापा की तबीयत कुछ ज्यादा ही खराब है, तो उनको दिक्कत हो रही है सर। हाँ जी सर, साथ में हार्ट पेशेंट भी है सर, उनकी 70 है सर, 70 से अप ही है सर। हाँ जी सर। तो क्या पूछ रहे हैं? हाँ, उनके लिए सर क्या उनको करना है? अस्थमा की दिक्कत है। हाँ जी सर। अभी अस्थमा के लिए क्या दवा ले रहे हैं, इनहेलर क्या ले रहे हैं? इनहेलर ले रहे हैं सर। इनहेलर, ठीक है। तो हाँ जी सर। कब से है अस्थमा उनको? सर 2-1 साल हो गई है सर, पहले वो हार्ट के पेशेंट थे। हाँ जी सर। हार्ट की प्रॉब्लम कब से है? हार्ट की प्रॉब्लम सर 2007 से है उनको। ओके, तो हार्ट की प्रॉब्लम के लिए भी दवा ले रहे हैं? हाँ जी सर, दोनों एक साथ ले रहे हैं सर। ओके, दोनों की दवा लें, ठीक है, कोई बात नहीं। तो अस्थमा के लिए एक तो मैंने आपको बताया था ना, वो चेस्ट पैक जो बताया था, उसको यूज कर सकते हैं रोज, ठीक है ना। रोज सुबह आप चेस्ट पैक दीजिए उनको। जलनेती आप जानते हो तो जलनेती भी उनको सिखाइए। और दूसरा जो अभी हॉट फूड बात बताया था, पैरों को गर्म पानी में रखने का, वो भी करिए। खाने में जो है वो मिल्क वाली चीजें बंद करिए, दूध दही ऐसी चीजें मत दीजिए उनको, है ना। हरी सब्जियां ज्यादा दीजिए, फल वगैरह जो उनको अच्छा लगता है। उनको अगर हरी सब्जी भी देते हैं तो सर उनको दिक्कत हो जाती है सर, उनको खांसी लगना शुरू हो जाता है कंटिन्यू, अगर हरी सब्जी देते हैं सर। अच्छा ठीक है, पर दूध भी तो देते होंगे ना? नहीं देते? हाँ जी सर, दूध भी देते हैं सर कभी तो दूध बंद करिए ना, दूध बंद करिए, फिर हरी सब्जी शुरू करिए। देखिए दूध देते रहेंगे तो कफ बनता रहेगा, कफ बनता रहेगा, कफ निकलता रहेगा, वो तो प्रोसेस चलता रहेगा। कभी कफ बनना तो बंद होगा नहीं ना, क्योंकि बन रहा है, निकल रहा है। तो द प्रॉब्लम इज कि हम कफ का बनना रोकेंगे ना, तभी तो बंद होगा ना वो। हाँ, तो दूध की मात्रा धीरे धीरे कम करिए, एकदम से नहीं कर सकते, है ना। और चाय भी नहीं दे तो अच्छा है, ये हर्बल टी आती है, तुलसी वगैरह का काढ़ा जो बनता है वो दीजिए, वो ज्यादा अच्छा है। देखिए आपको कोशिश करनी होगी कि कफ का बनना धीरे धीरे कम हो, है ना। कफ का बनना कम होगा तो स्ट्रेंथ भी बढ़ेगी, और स्ट्रेंथ बढ़ेगी तो धीरे धीरे प्रॉब्लम सॉल्व भी होगी। अभी क्या होता है ना कि दोनों चीजें चल रही हैं, कफ भी बन रहा है और चलता रहता है। थोड़ा सा उस तरफ से अल्टरनेटिव क्या है फिर सर? इसका दूध का अल्टरनेटिव फिर क्या है अस्थमा के पेशेंट्स के लिए? आपने एज कितनी बताई पिताजी की? 70 सर। हाँ, तो अभी जरूरत नहीं है ना उनको, जब एक बार ये प्रॉब्लम ठीक हो जाए तो सोचेंगे। अब दूध का अल्टरनेटिव क्यों सोच रहे हैं आप? जो है जरूरी थोड़ी है सबको दूध पीना। आप उनको स्प्राउट्स जो हैं वो दीजिए, उससे प्रोटीन मिलेगा उनको, और हरी सब्जियां हैं उसमें बहुत सारी चीजें हैं, मिनरल्स हैं, विटामिन है, फल है, वो सब चीजें दीजिए। एक बार ये प्रॉब्लम कवर हो जाए ना, रिकवर हो जाए, कंट्रोल में आ जाए, उसके बाद देखेंगे दूध को कैसे देना है, उसके बाद शुरू करेंगे। फिलहाल मुझे लगता है कि अभी जरूरत नहीं है, एक बार बंद करके देखिए आप, और अगर आप हफ्ते 10 दिन बंद करेंगे ना तो इमीडिएट आपको उसका रिजल्ट जो है पता चलेगा। ठीक है, थैंक यू सर। जी ठीक है सर। मेरा क्वेश्चन है, सर साइनस के लिए कुछ बता देंगे? साइनस किसको, आपको है? सर मेरी सिस्टर को है। ओके, कितनी बड़ी है? सिस्टर को सर। कितनी बड़ी है? 26 साल। ओके, तो क्या साइनस की क्या मतलब सांस लेने में दिक्कत होती है? क्या साइनस बढ़ा हुआ है, क्या है? साइनोसाइटिस है, क्या है? सर साइनस बढ़ा हुआ है उसका। ओके, चलिए ठीक है। तो अभी आपने कुछ किया उनको, क्या मतलब डॉक्टर को दिखाया था, ईएनटी वगैरह को, किसी को? नहीं सर दिखाया था, पर अभी ऐसा कुछ किया नहीं है, जल नेति करती है सर वो। कोई बात नहीं किया, कोई दिक्कत नहीं। उन्होंने क्या एडवाइस किया जिसको दिखाया था?
कुछ उन्होंने एडवाइस सरसों किया के होगा तेल ना? है जी? जी सर, सरसों के तेल की मालिश करने को बोला था उन्होंने। कहाँ पे? नोज में सर। ओके, ठीक है। तो आप ऐसा करिए, साइनस की प्रॉब्लम है तो एक तो जलनेती उस कराई जाती है, आपके यहाँ योगा टीचर होंगे उनसे सीख लीजिए। सूत्र नीति है, सूर्य नमस्कार का अभ्यास है, डीप ब्रीदिंग है, प्राणायाम है ना? ये सारी चीजें करिए और खाने में उनको जो है फल और सब्जियों का इस्तेमाल ज्यादा करने के लिए कहिए। स्प्राउट्स हैं वो ज्यादा लीजिए, है ना? और ये सारी चीजें करेंगे तो ये तो बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। आप चाहें तो उसकी पहले जांच करा लीजिए और 1 महीने करने के बाद दोबारा जांच करा के देख लीजिए, आपको सामने रिजल्ट पता चल जाएगा जी। साइनस तो बहुत अच्छे से ठीक हो जाता है योग से, नेचुरोपैथी से, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन थोड़ा सा नियम से करना पड़ेगा उनको जी। ओके सर, थैंक यू। नमस्कार सर, मेरा भी एक क्वेश्चन है जी। ये चलता रहेगा, 12 बज गए सर। सोराइसिस के लिए। हाँ जी रस्तोगी जी। नमस्ते मैडम। नमस्कार, कैसे हैं? बढ़िया, ठीक हूँ मैडम, ठीक है। मैं अभी ग्रुप में नंबर डाल दूंगा, सारे लोग टेलीफोनिकली सर से बात कर सकते हैं। ठीक है। आप कैसे हैं जी? जी, मैं भी एक चीज ये पूछना चाह रही थी, आज फास्टिंग की जो बात कर रहे हैं, आजकल एक नई थ्योरी आई है कि आपको 36 घंटे तक फास्ट रखना है। हाँ। फिर उसके बाद खाना है। क्या वो आपको लगता है कि भी कोई विजिबल है? क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि जी सुबह 6 बजे शाम को खाया, उसके बाद दोपहर को 12 बजे ही उन्होंने खाना है, तब तक सारा दिन कुछ नहीं खाएंगे। तो क्या ये बेस्ट है? क्योंकि बहुत सारी कह रहे हैं कि इससे डिजीज जो है खत्म हो रही है, खासकर शुगर के लिए बहुत मैंने सुना है, और मैं कुछ जानती हूँ कुछ लोगों को, उन्होंने ऐसा किया है। क्या ये एडवाइस है ऐसा? मैडम अभी बहुत सारी रिसर्चेज हो रही हैं, जैसे आप बता रहे हैं ना, ऐसा मैंने भी बहुत सारे वीडियो देखे हैं, बहुत सारे देखे हैं। सो कई बार क्या होता है ना कि जैसे मुझे बहुत सी चीजों से फायदा है तो मैं जैसे फ्लोट कर दिया मैंने। अब इंटरनेट पे hundreds thousands of information are available, है ना? और बीइंग ए रिस्पांसिबल सिटीजन अंटिल हम इस बात को एश्योर नहीं कर सकते कि ये वास्तव में रियली यूजफुल है, तब तक नहीं कर सकते। सो एज ऑन टुडे आई हैव नो क्लियर कट इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग दैट 36 घंटे तक खाने से ये होता है ना? पर मुझे भी कई लोगों ने बताया, तो आई एम कलेक्टिंग द इंफॉर्मेशन। कुछ ऐसा होगा तो डेफिनेटली आई विल शेयर विद यू। या बिल्कुल बिल्कुल आप करें। बाकी एक किसी स्टूडेंट ने यहाँ पूछा था, वो कॉन्स्टिपेशन की जो बात कर रहे थे, आप करके देख सकते हैं कि अजवाइन, सौंफ और जीरा तीनों को बराबर मात्रा में लेकर के उसको तवे पे भून लें और उसके बाद उसको पीस कर सुबह गर्म पानी के साथ रोज खाएं। और उससे काफी लोगों को जो है, क्योंकि विंड के बनने से भी कॉन्स्टिपेशन जो है ज्यादा प्रॉब्लम रहती है, एक तो ये ठीक हो सकता है। दूसरा, एक स्टूडेंट ने कहा शैटिका की जिन्होंने बात की है, तो वो कोशिश करें कि जो भी जिनको भी शैटिका है वो हार्ड सरफेस पे ना बैठे। जब भी वो हार्ड सरफेस पे बैठेंगे तब उनके शैटिका ज्यादा एक्टिवेट हो जाएगा, और जैसे एक्टिव होगा तो उनको तंग करेगा। इसलिए सॉफ्ट सरफेस का मतलब ये है कि भी वो जैसे कुर्सी पे बैठते हैं तो गद्दी रख करके बैठे, जी। तो उनकी शैटिका जो है वो कम जो है वो एक्टिवेट होगी और करेगी। आप पहले प्रॉब्लम हुई, चलिए बहुत दिन के बाद आपको भी देखने को भी मिला। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। मैंने आपसे क्वेश्चन बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन शेयर करी जी। हाँ, वो चलिए चलती रहती है, स्टूडेंट्स हैं ये, हमारे को तो ये मिलते रहते हैं, तो ये है कि ज्यादा आपसे ही बात करें तो बहुत अच्छी बात है। चलिए फोन पे बात करते रहेंगे, बहुत मैं करूंगा मैडम जी, मैं करता हूँ मैम। तो हमारे जो निराजल व्रत है वो इसी तरीके, इसी पे ही आधारित है निराजल व्रत। तो उसमें जो 24 घंटे या 25 घंटे की बात कही गई है, तो निराजल व्रत इसी पर ही आधारित है, थेरेपी पे ही आधारित है। तो जो रिसर्चेस हो रही हैं वो इस दिशा में जो भी हो, लेकिन मुझे जहां तक लगता है ये जो निराजल व्रत है बहुत इसीलिए इफेक्टिव था, और तभी हमारे ऋषियों ने और मुनियों ने इस व्रत के लिए कहा। नहीं तो वो तो ठीक है, जब जो ऋषि मुनि की आप बात करते हैं तो वो साधना के साथ करते हैं, बहुत सारी चीजों को छोड़ के करते हैं। पर आम आदमी जो गृहस्थी व्यक्ति है वो जब निराजल व्रत रखता है या इस तरह से जो आप बात कर रही हैं,
उसके ऊपर कितना इफेक्ट होता है वो बात दूसरी है। ये आप साधु संतों के साथ या सन्यासियों के साथ जोड़ करके इसको देखेंगे तो मुझे लगता है कि फायदा होने की बजाय वो नुकसान हो जाएगा। तो इसलिए जी मैं परिस्थिति के अकॉर्डिंग करें, वैसे गृहस्थ महिलाएं करती हैं यूपी और राजस्थान में निराजल 24 आवर्स का करती तीज में, तो उन महिलाओं पर मैंने इसका बहुत प्रतिकूल असर नहीं देखा, अनुकूल असर ही है। तो ये है कि हाँ, परिस्थिति के अनुसार आज हम वर्किंग हैं बहुत ज्यादा और शरीर में उतनी क्षमता नहीं रह गई है, तो फिर इतना हम शायद 24 आवर्स नहीं झेल पाते, लेकिन जहाँ पहले रहती थी आज भी रह रही है महिलाएं तो है उनमें इफेक्ट। अनुकूल है, प्रतिकूल तो जब होने लगे। ऐसा नहीं है। आप राजस्थान की महिलाओं की बात करती हैं, मैं जब यूनिवर्सिटी में पढ़ा रही थी तो सुबह 6:30 बजे आती थी और शाम को 5 बजे जाती थी, और दिन में कुछ नहीं खाती थी, ना मैं चाय वहां पे पीती थी, पानी कभी पी लिया नहीं, क्योंकि मेरे जो पुराने स्टूडेंट है दे नो इट कि भी कभी उन्होंने मुझे नहीं देखा होगा वहां कुछ खाते हुए, ना मैं घर से कुछ लेके आती थी, तो शाम को 5 बजे जाके खाती थी। बट अब घर में हूँ तो अब नहीं पॉसिबल हो पाता, अब जो है वो लगता है कि नहीं भूख लगी है, तो ये परिस्थितियों के अनुसार चेंज हो जाता है। हाँ ठीक है सर नमस्कार। मैं आपको बता दूं सभी के लिए, मेरी भाभी हैं और बड़ी जिज्ञासु हैं और सारा कार्यक्रम ये देखती है, और सबसे बड़ी चीज है कि कुशल गृहिणी और एक विदुषी महिला है, तो प्रत्येक चीज में इनकी अभिरुचि ज्यादा है, खास करके अपने लिए नहीं समाज और परिवार के लिए भी आप बहुत ज्यादा सहयोग करती है, इसलिए आपको बहुत सारे लोगों की चिंता होती है, कुछ प्रश्न अपने लिए, बहुत सारे प्रश्न इनके बहुत दूसरों के लिए भी होते हैं, तो इसलिए मैं धन्यवाद करता हूँ। सपरिवार हम इस कार्यक्रम में सम्मिलित होते हैं सर, और आपने हम सभी का मार्गदर्शन किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। अब मैं दिसंबर सर से प्रार्थना करूंगा कि अभिवादन और शांति पाठ के लिए। सबको प्रणाम, नमस्कार सर। नमस्कार। नमस्कार सर। बड़े समय बाद आपसे मुलाकात का मौका मिला, ये हमारा सौभाग्य है। और क्योंकि नेचुरोपैथी और योग के संबंध में स्टूडेंट्स भी काफी पूछते थे, लेकिन मुझे आशा है कि उनकी जिज्ञासा जरूर शांत हुई होगी। आपका ये बहुत अच्छा लेक्चर रहा स्टूडेंट्स के लिए और सभी सुनने वालों के लिए। मैं विश्वविद्यालय परिवार की ओर से कुलपति आदरणीय प्रोफेसर सिकंदर कुमार जी की ओर से, विभाग अध्यक्ष आदरणीय प्रोफेसर विजय कुमार शर्मा जी की ओर से, पूर्व विभाग अध्यक्ष प्रोफेसर रीटा भल्ला जी की ओर से, एवं मेरे सहयोगी डॉक्टर सत्यप्रकाश पाठक, डॉक्टर अर्पिता नेगी जी की ओर से, एवं स्वयं की ओर से, पीएचडी और एमफिल के शोधार्थियों की ओर से, डिप्लोमा और एमए के सभी योग साधक तथा भिन्न भिन्न स्थानों से जुड़े हुए आचार्य और अन्य योग साधकों की ओर से भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपके ज्ञानवर्धक वक्तव्य से सभी लोग अवश्य साधक गण अवश्य ही लाभान्वित हुए होंगे। अंत में स्वयं की ओर से और आप सभी को, सभी योग साधकों का आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम। शांति पाठ के लिए तैयार रहेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। ओम प्रणाम सभी को। Thank you, sir. Thank you. Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir. तो बड़ी लंबी राष्ट्रीय समस्या उत्पन्न हो गई सर, ये मीट ही नहीं चल रहा था गूगल में।
कहीं नहीं चला। मैं भी परेशान, और करते 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 2 ऐप तो नहीं चले, अंत में जूम पे ही इसमें काम आया। सुनील कल अल्टरनेट रखेंगे कल भी। ठीक है सर, ठीक है सर। जूम ही ज्यादा ठीक रहेगा, जूम परचेज कर लेते हैं, जूम ही ज्यादा ठीक रहेगा मुझे लगा। और कोई क्योंकि फिर वैसे इजी भी है, कंपैटिबल भी है। कट नहीं हुई है क्लास, आज कंटिन्यू थी सर। हाँ जी बेटा, हाँ इसमें कंटिन्यू चली भी सुनील 2 घंटे लगभग। वो मैंने करप्ट वर्जन डाल दिया था, तो वो 2-3 क्लास में ही चलेगा, इससे ज्यादा पे करप्ट हो जाएगा। तो आज की क्लास का ये एक्चुअली मैंने ऑप्शन रखा था अपने पास कि जब गूगल जियो मीट मैंने डाउनलोड किया था तो वहां पे एक ऑप्शन था कि करप्ट वर्जन निकाल दूं मैं, तो ये 2-3 मीटिंग में ही चलेगा, इससे ज्यादा नहीं चल पाएगा। नहीं तो ठीक है। तो कल की मीटिंग शायद हो जाए, फिर परसों खत्म हो जाएगा। अच्छा, कल उनका रहेगा मनमत गरोटे जी का, MM गरोटे जी सर, जी सर। ये रहेंगे टेक्सचुअल रेफरेंसेस ऑफ योगा थेरेपी के बारे में रहेगा। ऐसी टॉपिक तो उन्होंने दिया था, देख लीजिए, नहीं है तो टॉपिक मैं देता हूँ, उनको बात करेंगे। ठीक है, राइट सर, राइट जी। तो सुबह के सेशन, हाँ जी मैम कुछ कह रहे जी? बढ़िया बढ़िया। ये जियो मीट पे प्रॉब्लम आती है, जियो मीट पे जल्दी लिंक में नहीं अटैच होता, आगे भी ये प्रॉब्लम आती रही है, इससे चाहे जूम ज्यादा बेटर है। जूम, लेकिन मैम आज पूरे हमारे यहाँ बच्चे छोटे बैठे थे, उनकी भी क्लासेस नहीं चली, कहीं भी कोई जुड़ी नहीं पा रहा था, हर 2 सेकंड बाद वो हट गया। और सुबह की क्लास में बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हुआ, खास करके प्रैक्टिकल तो हो ही नहीं पाया। जुड़ रहे लोग, हट रहे, जुड़ रहे, तो हमें तो ये लगा कि गूगल मीट में इशू आ गया था, तो इसलिए जियो मीट भी हमने हटा दिया, अब जूम ही देखेंगे। जूम अगर परचेज कर लेते हैं और उसके अकॉर्डिंगली हमें मुझे तो लगा कि रस्तोगी जी को प्रणाम करके क्षमा मांगू कि आगे रख देता हूँ। एक समय ऐसा आ गया, लेकिन ये कि नुकसान सभी के समय का, जो लोग समय नियोजित करके बैठे हैं ना, सभी का नुकसान है। और खास करके बच्चे भी करप्ट वर्जन भी चल गया, मुझे था ये नहीं चल पाएगा, पर ऑन सपोर्ट इसने धोखा ही नहीं दिया, तो आई थॉट कि पॉजिटिव एनर्जी था, तो कोई दिक्कत नहीं आया। अरे कम से 8-10 ऐप हमने अलग अलग डाउनलोड लिया, हमने कहा किसी एक पे चला देंगे कोई भी। अच्छा, हर पीछे उसमें भी बहुत ज्यादा दिक्कत आई ना जियो ऐप में, मैं खुद भी अवेलेबल नहीं हो पा रहा हूँ, बार बार कह रहा कि आप डिस्कनेक्ट हो गए। पर पता नहीं सर, रिव्यू बहुत अच्छे दिखा रहा था जियो मीटिंग के, तो मैंने सोचा शायद डाउनलोड कर लेता हूँ, मैंने चलाई नहीं थी। रिव्यू क्या, एक साथ हम कम 8-10 लोग एक साथ हो सकते हैं, इसमें तो कम 4 लोग हैं, उसमें ज्यादा लोग हो सकते हैं, लेकिन हमें जियो मीट तो डाउनलोड ही नहीं हो रही थी। जी सर, जियो मीट डाउनलोड ही नहीं हो रही थी, कई जगह तो ऐसी। हाँ जी सर, मुझे रिव्यू उसके अच्छे मिले तो मैंने सोचा कि शायद अच्छे होंगे। नहीं, वो प्ले स्टोर पे जाके ही डाउनलोड करनी पड़ी, प्ले स्टोर में ही हो रही थी। यस, नहीं हम जियो को ही फॉरवर्ड रखते हैं सर, जियो को ही फॉरवर्ड रखते हैं, तो रखते हैं सुनील जी फिर, है ना, जूम को ही फॉरवर्ड रखते हैं, तो इसको आगे गरोटे जी का बना दीजिए, मनमत गरोटे जी का देख लीजिए। जी सर, मैं आज ही अभी बना देता हूँ, थोड़ी देर बनाइए फटाफट, मैं सर्कुलेट करता हूँ, उनको भी भेजना। बस आप एक बार टॉपिक भेज दीजिएगा, मैं बना दूंगा उनका टॉपिक। आप दे दो, ठीक है, थैंक यू मैम। टेक्सचुअल रेफरेंसेस ऑफ योगा थेरेपी रखें सर। कल के लिए लिंक किस पे मिलेगा, लिंक कौन से ग्रुप पे मिलेगा कल के लिए सर? IDY ग्रुप है, इसमें ही आपको बताएंगे कौन से लिंक पे हम चल रहे हैं, उसे मोस्ट प्रोबेबली जूम पे ही देखेंगे, नहीं तो गूगल मीट अगर कल सपोर्ट किया तो उस पे चले। इससे आउट कैसे हो मैम? ऊपर देखो, ऊपर आप क्लिक करो, ऊपर लीव लिखा हुआ है रेड कलर का। आप अकेले बैठिए मैम, हम लोग जा रहे हैं, अपने आप अकेले रहेंगे। आप एक बार स्क्रीन पे टच कीजिए, टच करोगे ठीक है, अपने स्क्रीन पे टच करिए। हाँ नहीं, वो तो मैंने देख लिया। जहाँ तक अकेले बैठने की बात है, मुझे स्क्रीन पे अकेले बैठने की जरूरत क्या, मेरा तो घर ही मैं स्क्रीन पे क्यों बैठूं, घर में ना बैठूं। मैंने सोचा कि शायद ज्यादा लोग है ना इसमें ना मैम, जैसे वो पीछे बाहर आते थे ना, वैसे इसमें भी आ जाएंगे।